Assalamu alaikum, dear viewers on Kashmir Supports Watch. We are back live from SNW Memorial Ground in the match number 12 here. It's Ompura Master 11 Badgam is taking on KCA Bandipura here on a beautiful surface of this ground, which has been actually maintained yesterday after a lot of hard work by Shaheen Supports Association here. And this is Shafi along with me, his co-commentator. Along me is here another one, that is Lovely Omar. He will be also delivering. And thank you viewers for joining me. Nasir Loon is one of the great star of the valley. Is starting his bowling from side screen end, that is village side end. It has been signaled a no ball. And Nasir Loon has represented the JKCA. Thank you so much for joining me in this wonderful match here. Bowler comes now. Oh, elevates a bit there and well outside the off stump, well taken behind the wickets. It's no run results here. 17th edition of SNW Memorial 2020 trophy, which is being played here at SNW Memorial Ground, Chandrahama. Thank you so much, people joining me. Alphabet 11, thank you for calling this Kashmir Supports Watch as an ESPN or Star Supports. And a lot of people are joining me on social media. Thank you, Wasim, everybody. Nasir comes right arm over the stumps. To the left hand, Imtiaz. Oh, Imtiaz just launched an assault. It is over the top of the long on. It's all the way for a 6. What a shot. Beautifully played. Magnificent shot from Imtiaz. He is such a dashing cricketer. Left arm. Sheikh Nasir, thank you for joining me here. This is a wonderful tribute being given to the 3 legends of this village, Shabir, Nisar and Wahed. KCA Bandipura lost the toss and they have been asked to bowl first. Nasir comes right arm over the stumps. Shot again. Bit of a swing this time. Miscued completely and could not read the line of the ball. It's end of over here. Let's have a look on the score now. The 2 batsmen already at the middle there. This is the match number 12 of SNW 17th edition. Have a look on the fielding. Talking about the fielding, we have one slip in place, backward of point. Zaddar is at straight point. Cover, mid off, extra cover. This is the fielding through the offside. A big cordon through the offside, in fact. Slower one, and it is just copying on his helmet. And this is why the protection is very important for every batsman here. Uneven bounce there, Imtiaz. Left is walking towards the batsman. And it will take a bit of a time there. Physio has been called there. Although there was not much more pace on this delivery, but yet it has troubled him and it has evoked some pains as well. Welcome here, Lovely Omar, coming for the first time here on a big page of Kashmir Supports Watch, giving the live coverage from SNW Memorial Ground. So it's over to you, Andy. You will start your words as well, please. शुक्रिया शफी भाई, और सबसे पहले हम सभी व्यूवर्स का स्वागत करते हैं कश्मीर सपोर्ट्स वॉच पे। और टॉस जीता पहले ओमपुरा के कप्तान ने, उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और पहले जो 2 ओवर गटे हैं अभी तक बहुत बढ़िया रंग में दिखाई दे रही है 2 बल्लेबाज। और आपके सामने जो इस समय चित्र हैं शफी भाई, इस तरह के चित्र हमेशा अच्छे नहीं लगते हैं क्रिकेट फील्ड में, क्योंकि जब से वो क्रिकेट में फिलिप ह्यूजेस का किस्सा हुआ तब से इस तरह के चित्र हमेशा अच्छे नहीं लगते हैं मैदान के अंदर।
Yes, you are absolutely right. After the episode of Philip Hughes from Australia, a big asset and big cricketer, world cricket lost, when the ball struck on his, medulla oblongata, and after that he could not, came back, and that was a big loss to the world cricket. So that's why, Omar, it's very, very important. Every batsman, whether he's facing a spinner or a fast bowler or a military medium pacer, every time they should have a good protection, because apart from all the things, I think the more important is your health and your life. जी हाँ, आपने बिल्कुल सही शब्दों का इस्तेमाल किया है और चित्र के मोबाइल स्क्रीन के सामने बहुत ही अच्छे चित्र नज़र आ रहे हैं और खिलाड़ी एक बार फिर से मैदान के अंदर दिखाई दे रहे हैं, जो एक अच्छे संकेत है। हम यही देखना चाहते हैं कि क्रिकेट बहुत बढ़िया हो मैदान के अंदर। और नासिर कोहली जो बांडीपोरा से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी हैं। ख़ास तौर से अगर आप युवा खिलाड़ियों की बात करें, काफ़ी बढ़िया आगे की ओर वो जा रहे हैं अपने प्रदर्शन से। और कहना यही पड़ेगा कि अगर युवा खिलाड़ियों में प्रदर्शन करते हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको मैदान में दिखानी होगी और ये दर्शाया है इस नासिर कोहली ने। आज उनके ऊपर सभी निगाहें ज़रूर हैं। देखने वाली बात यही होगी कि वो किस प्रकार से अपना प्रदर्शन कर पाएंगे इस मैच को लेके। Absolutely, the two openers are Riaz Paul. Riaz Paul has faced 7 balls, 10 runs, and he has struck a boundary and a 6. Imtiaz lefty has faced 7 balls, 6 runs with 1 magnificent 6. Meanwhile, bowler is going to the top of his bowling mark with same fielding positions. Over number 3rd is in progress. 17 runs are on the board. Thank you, Advocate Hilal, for joining me. Thank you, Loon Kamran. This time slaps the ball over the extra cover. Let's wait. One bounce into the fence. Outfield is a bit slow through that side, and the ball has not achieved much more distance there. And until the batsman has returned it for a couple of runs here. Good fielding at the end, but score goes up to now 19. Advocate Hilal, the umpire, I always call him the Wikipedia umpire, best in the business. SNW is at its bloom now. Now 3 slips have been placed in. A bowler comes in. Right arm over the stumps once again. A bit is shorter in length, but not much more with it offered to the Riaz Paul. He just finds the fielder at the short cover. There is no run. Score stays on 19 without any loss, and over number 3rd is in progress. जी हाँ, उनका पहला ओवर जो उन्होंने किया था पारी का, वो थोड़ा सा महंगा साबित ज़रूर हुआ था, लेकिन अब उन्होंने वापसी ज़रूर की है इस ओवर में। अभी तक सही लाइन और लेंथ से इस समय गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया गेंद मिडिल और ऑफ स्टंप पे ये गेंद उन्होंने की थी। बैट्समैन पूरी तरह से बीट हुआ। और शफी भाई, जिस तरह का ये खेल है, T20 फॉर्मेट है, आपके सामने काफ़ी कुछ चैलेंज आते हैं, उनको एक खिलाड़ी के तौर पे आपको स्वीकारने की ज़रूरत है। वही खिलाड़ी महान बनते हैं इस खेल में, ये देखा गया है अभी तक इस खेल में। दाएं हाथ के खिलाड़ी अभी भी स्ट्राइक पे हैं और उन्होंने अभी तक बिल्कुल ये क्लियर किया है, इंटेंट उन्होंने क्लियर किया है, वो किस माइंडसेट के साथ अभी तक मैदान में आए हैं। ताउड़ तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं और उसी अंदाज में ये अभी तक खेल। और इस बार पॉइंट के ऊपर से बहुत ही खूबसूरत शॉट, शायद रोकना नामुमकिन होगा, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, बहुत बढ़िया चौका। Talking about the squads for the Masters 11 Ompura, they have, Feroz Ahmad, Ejaz Ahmad, Akib Khan, Gulzar Ahmad, Imtiaz Malla, Riaz Paul, Riaz Pari, Tausif, Umar Manzoor, and Zaidar. This is the squad for Ompura 11. Talking about the KC, Bandipora, they have got Khalid, the captain of the side, Arif, Butt Fazim, Butt Ishfaq, Ilal Ahmad, Khurshid Ahmad, Loon Nasir, Shamim Nazir, Talib Hussain, Zaid Butt, and Zameen as well. So this is the squad for KCA Bandipora. Zaidar is playing with KCA Bandipora, a magnificent, sensational cricket star, left-handed batsman, and he is playing with KCA Bandipora. Both the teams have locked up their horns. They are
absolutely the two strong teams of this tournament as well. Lonish Park, thank you for joining me from Damas Jewelers, and we are highly thankful to all the sponsors of 17th edition. And talking about the last shot, that was a lot of width was offered to the batsman. He goes on the back foot, creates a bit extra room and bangs the ball through the backward of point. One bounce into the fence for 4. So we are coming here into the over number 4th now. 3 overs gone. It's 23 on the board without any loss. Now Imtiaz Lefty will face Nasir. Once again, almost to drag is that ball from the off stumps and sends the ball towards the short cover. Well fielded, finds the fielder, and there is no run. Adil Hussain, I have talked about the both the scores. Thank you for coming live here and joining me, Kashmir Supports Watch, and we will be trying to give you the best cricket matches from SNW Memorial Ground. Now Nasir goes to the top of his bowling mark with one slip in place for Imtiaz Lefty. Imtiaz Lefty just guides the ball and sends it towards once again to the short cover, and there is no run. Score stays on 23 without any loss, and over number 4 is in progress. Nasir Dar, thank you so much for joining me, and this is Shafi and Lovely Umar extending all the greetings of Eid ul-Adha. A very, very happy Eid, and it has been a very good Eid for all the people. May this Eid will bring much more prosperity and peace in the world. Now Nasir comes right among the stumps. Oh, adjutant taken. No issues for umpire. There was a bit of a swing. Nasir is one of the magnificent bowlers here. I think not a good use of footwork this time by Imtiaz Lefty, and he just wanted to create much more room there, and finally it was a feather edge well taken behind the wickets. First wicket gone. Is 23 on the board. Omar. जी हाँ, जिसके लिए जाने जाते हैं इस गेंदबाज को, नासिर लोन को जिसके लिए जाने जाते हैं, एक बार फिर वो उस पे खड़े उतरते हुए, और ये उनके लिए अच्छे संकेत है बांडीपोरा के लिए। और ये मानना पड़ेगा कि उन्होंने अपने प्रदर्शन से ये ज़रूर बताया है कि क्यों है मुझ में इतनी काबिलियत। और शफी भाई, हमारे साथ बहुत सारे व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, उनमें से नासिर डार एक हिंदी कमेंटेटर, एक बहुत बढ़िया कमेंटेटर J&K की ओर से, और बहुत शुभ काम करते हैं। और ये मानना पड़ेगा कि उन्होंने इस क्रिकेट लेवल को दूसरे मुकाम पे लाया है। ये मानना पड़ेगा नासिर भाई, जिस तरह की उनकी टीम कार्य कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय, उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर शौकत खांडे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सभी लोग हमसे जो ज्वाइन इस वक्त कर रहे हैं, और इशफाक जैडलिन्स, आपका बहुत शुक्रिया। हम आपकी विशेष बांडीपुरा केसी तक पहुंचाएंगे। जावेद शरबुक के लिए हमें सलाम और ईद मुबारक भेजेगा, बहुत बहुत शुक्रिया। और महराब आसिर ने कहा कि आउट, और बिल्कुल बहुत अच्छा। हमारे कैमरामैन जो आज के अब्दुल रकीब, मुझे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त काम हमेशा से करते आई है। ओवैस वानी, आपका भी हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और मेरे साथ यहाँ पर फिरदौस मीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो ये जो कमेंट्स में हमें रिप्लाई करना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल काम भी है, क्योंकि कभी कभी उम्र ऐसा होता है कि कोई नाराज़ भी होता है कि हमारा जो कमेंट था उसमें कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मुझे लगता है कि हम कोशिश करेंगे ज़्यादा फोकस मैच पे, ताकि लोग जो है वो एंटरटेन करेंगे कश्मीर सपोर्ट्स वॉच पे। और ऐसा होना चाहिए कि ये मैच जो SNW से, इट शुड लुक लाइक एन इंटरनेशनल कैलिबर ऑफ 2020 मैच। जी हाँ, यही तो हमारा प्रयास है बहुत अच्छा करने का, और हमें उम्मीद है जो हमारे साथ व्यूअर्स हैं वो उसको पूरी तरह से समझ सकें। और हम बातचीत कर रहे थे इस समय, जो गेंदबाजी कर रहे हैं, नासिर लोन ने दूसरे ओवर में झटका दिया था, और शफी जिस तरह की वो गेंदबाजी करे, पहले 2 गेंदें उन्होंने बिल्कुल इन स्विंग की थी, और तीसरी गेंद जो थी पड़ने के बाद हल्की से उन्होंने कांटा बदला आउट स्विंग के रूप में, और बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं था, और पहले विकेट का पतंग उसी के साथ नासिर लोन ने दिया अपनी टीम को। Oh, yeah, absolutely. That is very, very important wicket, and everybody knows the talent of Imtiaz Lefty. He is such a great star of the valley, hailing from district Budgam, and getting his wicket is absolutely kind of a dream for any bowler. Meanwhile, Nasir comes. Oh, that's a beauty. That is a wonderful delivery. A bit of a fumble here. And well taken behind the wickets at the end. There is no run. Score stays on. Have a look on it. It's 23 for the loss of 1 wicket. Over number 4 is in progress. And another batsman here walks down the middle. It is Ejaz.
जी हाँ, ये चौथा ओवर प्रगति पे हैं और बोर्ड पे 23 रन लग चुके हैं मास्टर 11 ओमपुरा की ओर से। एजाज अहमद और रियाज पॉल इस समय मैदान के अंदर हैं। बट आबिदा का बहुत बहुत शुक्रिया, लतीफ आपका भी बहुत शुक्रिया, बट उबैद आपका बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छी गेंद एक बार फिर, इट वाज अ गुड लाइन, परफेक्ट लाइन, इट वाज बिट लोअर and doesn't create much more bounce there, and batsman leaves the ball towards the wicket keeper, well pouched behind the wickets, and there is no run. Like IPL, some people are commenting on the social media, this ground is looking like an IPL match, and why not? We are trying to give you much more better entertainment, and I hope the people on the social media will be sharing much more page so that we'll be connected with a lot of people. जी हाँ, आपने बिल्कुल सही शब्दों का इस्तेमाल किया है। इस एडिशन के तो क्या कहने हैं, 70th एडिशन ये अपने आप में ही एक उपलब्धि है, ये मानना पड़ेगा। 4 ओवर की समाप्ति पे 23 पे 1 मास्टर 11 ओमपुरा की टीम। और शफी भाई, हम यही बातचीत कर रहे थे इस प्रतियोगिता को लेकर, 17th एडिशन अगर आप शब्दों में बयान कर सकते हैं। ये प्रतियोगिता ही एक अलग मुकाम पे है और उसकी जितनी सराहना करे वो कम है। और JNK की सभी दिग्गज टीमें इसमें भाग ले रहे हैं इस प्रतियोगिता में, तो ये एक चंद्रहामा के लिए शुभ संकेत है। और इंशाल्लाह हम आशा यही करेंगे कि आने वाले समय में इससे बड़े इवेंट्स यहाँ निश्चित तौर पे होंगे। Shahid, this ground is in Chandrahama, 3 kilometers away from the national highway, and this is the ground when tournament of SNW started in 2004 when Nesbel became the first champion. So far we have 16 edition before 2021. Finally we are in the 17th edition, and 64 teams are once again participating, and they have shown their faith and trust towards the Shahin Supports Association, and we love to host such a big event. और गेंदबाजी में पहला परिवर्तन देखने को मिलता हुआ हिलाल अहमद को अब गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है। पहली गेंद स्लोवर गेंद फेंकी थी, शायद बल्लेबाज ने वो बांपा नहीं था। शफी भाई, कहा भी यही जाता है इस T20 फॉर्मेट में गेंदबाज वही सफल होते हैं जो अपनी ताकत पे खेले, खास तौर से जो विविधता और निरंतरता से गेंदबाजी करे, वही इस फॉर्मेट में कामयाब हैं। ये मैं नहीं कहता, ये आंकड़े स्टैट्स दर्शाते हैं इस फॉर्मेट के। शबनम, थैंक यू सो मच, एंड इरफान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड शौकत खांडे आपका बहुत शुक्रिया। Meanwhile, ball comes in. That was a hop volley that has been banged all the way. Launch it. Let's wait. One bounce into the fence for 4. जी हाँ, गेंदबाज के सर के ऊपर से उठाया और ये सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है क्रिकेट में। और बैट्समैन जब इस तरह के शॉट खेलता है, कहीं ना कहीं उनकी जो मानसिकता है वो 7वें आसमान पे जरूर होती है इन शॉट्स को देखते हुए। Yeah, absolutely. It was a half volley. Batsman, just send this ball in style. Absolutely, one bounce into the fence for 4. Riaz Paul is moving up to now 20. He has faced 14 balls, and the score goes up to 27 for the loss of 1 wicket here. Ejaz is at the non-strikers, and Riaz Paul is facing the bowler, and Hilal Ahmed has bowled 2 overs in his first over, and this is going to be the 5th over of the innings. Right arm over the stumps. Now protection in the deep off long off. Oh, that is striking on the pads, and he didn't gone for appeal because he knows that it was pitching up. It was missing the bells even. So that is why finally the bowler did not go for the appeal there. हाँ जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। ये गेंद काफ़ी ऊपर लगी थी और इसीलिए अंपायर के लिए ये बहुत ही आसान निर्णय था। पूरी तरह से उन्होंने नकारा ये जो अपील हुई थी अंपायर के लिए। रैनवी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मोहम्मद आकिब आपका बहुत शुक्रिया, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, नाइस कमेंट्री, रईस आपका बहुत शुक्रिया, फरोट 11 का बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी हमारी तरफ से पूरी मैनेजमेंट को, जीशान भाई, बाकी जितने भी आपके साथ लोग हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद हो। Comes down the track and just smacks the ball. It is going all the way deep sky leg. There is no protection, Umar, and it's a boundary here. And score goes up to now 31. 1 wicket down. Over number 50 is in progress. Both the batsmen have started to start an assault on the bowlers. I think magnificent cricket we are watching at the moment. जी हाँ, अगर आप फील्ड अनुसार गेंदबाजी नहीं कर सकते हैं तो इस तरह की दिक्कतें हमेशा नजर आती है कप्तान के ऊपर, और यही देखा गया है। अगर आप कप्तान के चेहरे पे उनकी प्रतिक्रिया देखेंगे, थोड़ा सा निराश लग रहे हैं, और क्यों नहीं। वो जानते हैं अगर गेंदबाजों को कुछ कार्य सौंप दिया जाता है, अगर वो उसके अनुसार गेंदबाजी नहीं कर सकते हैं तो किसी भी कप्तान के लिए दिक्कतें खड़ी जरूर होते हैं। और Nawaz Dar, thank you so much. Inshallah, we will be trying to give you the best Urdu commentary as well from lovely Umar, and he's having a good talent. We are trying to
respect each and every language, be it Kashmiri, be it English, be it any language of the world. And I hope the more important for you people is just enjoy the match. जी हाँ, मेरा यही मानना है कि लोग काफ़ी विचार रखते हैं मेरे बारे में, क्योंकि मैं आप वही जज करें, हम खेल अनुसार अपनी बातें कहें, आप हमको सारा सुने, जितना खेल में होगा हम वही आपको बताएंगे, टू द पॉइंट हम करने की कोशिश करें, यही हमारी यहाँ इच्छा है। और अभी तक पूरी तरह से रियाज पॉल जो हैं उन्होंने बहुत ही आतशी बल्लेबाजी की है। 17 गेंदों में उन्होंने 24 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 1 छक्का मौजूद हैं। 141 की स्ट्राइक रेट से वो की। इस बार एक बार फिर से खिलाड़ी नीचे, और वो बहुत ही आसान मौका उन्होंने छोड़ा, जो सरल मौका शफी भाई कहते हैं, और इस तरह की कैचेस आप नहीं छोड़ सकते हैं इस स्तर के। Oh, misunderstanding between Zaid and another fielder here. Somebody called them that Zaid is going to underneath it, but finally this was a miscommunication, and catches win the matches. If you want to win the matches like SNW 2020 trophy, you have to pull out all the stoppers, otherwise you will be knocked out of the competition. जी हाँ, अगर आप रियाज पॉल की बात करें और उनका कैच छोड़ना, ये अच्छे संकेत नहीं है बांडीपोरा के लिए। ये देखना होगा कि वो इस कैच ड्रॉप को अब किस तरह से आगे ले जा सकते हैं। शफी उनके साथ सहयोग इस समय दे रहे हैं। एजाज अहमद, हालांकि उन्होंने 3 गेंदों का सामना किया, अभी तक उन्होंने रन नहीं बनाए हैं, लेकिन उनको ये मालूम है जो उनके नॉन स्ट्राइकिंग एंड से खेल रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया रंग में दिखाई दे रहे हैं। नासिर लोन को एक बार फिर से गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है। अमूमन ये कम देखा गया है कि एक गेंदबाज को आप तीसरा ओवर लगातार करा रहे हैं, लेकिन शफी भाई ये हो रहा है नासिर लोन को। We are highly thankful to General Secretary of the Shaheen Supports Association, the legend of this village. Gulzar Saab is also watching the match from the balcony there, and it looks magnificent atmosphere in the ground. 32 degrees Celsius temperature, bit humid, but it is not much more scorching. It looks quite pleasant for the game of cricket here. इस बार आगे एक और कैच यहाँ, लेकिन एक बार फिर उन्होंने छोड़ा। लग तो यही रहा था कि वो आसान से इस कैच को लपक सकते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने ग्राउंड फील्डिंग से निराश किया था। और अगर आप इस तरह के कैचेस छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आपकी टीम की ओर से ज़रूर नज़र आई होगी। और ये देखा जाता है क्योंकि खिलाड़ी की जो इस समय मानसिकता है वो थोड़ी सी गिरती नजर आ रही है। और शफी भाई, आप माशाल्लाह काफ़ी समय से इसमें हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं इस मैच को? अगर आप गेंदबाजों का सहयोग नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं ये अच्छे संकेत आपके लिए नहीं है। I think although if few shots have been played by the batsmen, be it Imtiaz, be it Riaz Paul or Ejaz, but I believe in 2020 cricket that if it is all about the batsmen, but sometimes the bowlers can pull out all the socks. I think the bowlers have done a magnificent job so far, but they have not been well assisted by the fielder. So you have seen a lot of things happened in world cricket, like Shoaib Akhtar was not well, assisted by the fielders. If you are doing fielding like this, I think you will be knocked out of the competition. जी हाँ, आप वो प्रतियोगिता खेल रहे हैं, इसमें गलती करने की गुंजाइश नहीं है। अगर आप गलतियां करते हैं तो आप मैचेस हारते हैं, यहाँ सुधरने का आपको मौका नहीं मिलेगा। एक बार आप गलती करते हैं, न केवल आप वो मैच हारते हैं बल्कि आप सीधा इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि यहाँ गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये 6वां ओवर प्रगति पे है और 35 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। एक खिलाड़ी उन्होंने ज़रूर खोया है। बहुत ही अच्छी गेंद पड़ने के बाद हल्का सा उन्होंने कांटा ज़रूर बदला था, अंदर की ओर आई थी, लेकिन बल्लेबाज खेलने में असहमत ज़रूर रहे हैं और बीट हुए हैं ये। और कप्तान ने इसलिए नासिर लोन को तीसरा ओवर यहाँ कराया है ताकि उसको ये एहसास है कि अगर एक और विकेट यहाँ चटकाने में सक्षम रहे नासिर, तो कहीं ना कहीं अतिरिक्त दबाव महसूस ज़रूर करेंगे मास्टर 11 ओमपुरा के खिलाड़ी। लेकिन ये देखना होगा क्या होगा। अभी तक इस बार एक बार फिर से मिड ऑफ के ऊपर से खेला और खिलाड़ी उसके पीछे जरूर हैं, लेकिन रोकने में सफल नहीं होंगे और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर एक और चौवा। बहुत ही खूबसूरत दर्शनीय शॉट और इंटेंट जो था वो बिल्कुल क्लियर था। और कहते हैं ना कि जो आपका स्वाभाविक खेल है, जो आप बचपन से खेलते आए हैं, आप वही खेलने का प्रयास करें, तब जाके आप सफल होते हैं इस फॉर्मेट में। और अभी तक ये देखा गया है, ये 6वां ओवर प्रगति पे है और 39 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। अभी भी 2 गेंदें शेष हैं इस ओवर में।
और उनको ये एहसास भी है कि फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस हैं शफी भाई, उनका वो पूरी तरह से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन कहना पड़ेगा कि अभी तक सफल भी हुए हैं ये। नासिर लोन तीसरा ओवर अपना करते हुए, अपने कोटे का तीसरा ओवर करते हुए, लेकिन इस ओवर में बहुत अच्छी तरह से खेला यहाँ मास्टर 11 ओमपोरा के खिलाड़ियों ने, और ख़ास तौर से रियाज पॉल ने और उसका साथ देते हुए इजाज अहमद, जिन्होंने 5 गेंदे का सामना किया और 4 रन बना। एक बार फिर से करीबी मामला होता, अगर हल्का सा भी उसको एज लगता तो यहाँ करीबी मामला होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और क्रिकेट में अगर मगर की कहानियाँ नहीं चलती हैं, और इसीलिए इस खेल को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। जब तक कि आखिरी गेंद ना फेंके कोई भी टीम जीतती नहीं है, और यही अभी तक देखा गया है इस खेल में। काफ़ी पॉपुलर खेल है क्रिकेट, खैर भारत में तो इसको धर्म के तौर पे भी देखा जाता है, और J&K में भी ये पिछले कुछ सालों से काफ़ी पॉपुलर हुआ, और ये एक अच्छी संकेत है। हम अपने युवाओं को बहुत ऊपरी जगहों पे देखना चाहते हैं। एक बार फिर से गेंद हवा में, नीचे खिलाड़ी, और एक बार फिर से कैच लेने में फिर से चूक गए हैं। और नासिर देखिए कितने निराश हैं, आप अपने स्क्रीन पे ज़रूर देख रहे हैं। नासिर लोन काफ़ी निराश हैं अपने फील्डरों से, और क्यों नहीं। और इसी के साथ 6 ओवर की समाप्ति के बाद 40 पे 1 मास्टर 11 ओमपुरा की टीम। शफी भाई, Master 11 Ompura, they won the toss and decided to bat first. And this is going to be the bell drop match today again. If you want to win this match, you have to go for a tight fielding. Show your best commitment on the fielding. You have to give all the dedication and determination towards the game of cricket. Otherwise, there is no scope of errors in the game as well, because this is a kind of a tournament, kind of a competition in which all the big stars of the valley are playing, and hopefully now the KCA Bandipura, who are not looking good in terms of the fielding, and so far it has been a very floppy and a very sloppy fielding by all the fielders. 3 catches have been dropped, 2 catches on the bowling of Nasir, and that is not a good sign. Meanwhile, bowler goes to the top of his bowling mark. Khurshid has bowled 2 overs, no maiden, 16 runs. Khan has bowled 3 overs, 1 maiden, 15 runs. Hilal has this time takes an inside edge ball, is racing down the line here through the third man fence. No protection in the deep, it's all the way, couple of bounces for 4 here. Deliberately played by the batsman at the moment here. Riaz Paul is not out on 28, and Ejaz is not out on 9 runs. He has faced 8 balls, 2 boundaries at the strike rate of 112. And the current run rate is 7.14. If they will go with this, current run rate, this projected score will be around 143. Up comes the bowler. This time beautifully in the block hole. Well bowled, but well blocked as well. Sends the ball towards the long off, fielder was there. Batsmen have all the time to go for a single here. Now the score moves up to 45 for the loss of 1 wicket, and 7th over is in progress. Restrictions have been removed now. Slower one, he has banged the ball, fielder is there, but he has to cover a lot of distance until he returns the ball back to the wicketkeeper. There is ample time for both the batsmen to go for a couple of runs here. Now the score moves up to now 47 for the loss of 1 wicket. Over number 7th is in progress. The 2 batsmen at the middle are Riaz Paul and Ejaz. Hilal has bowled 3 balls in this over. Before this, he has bowled 1 over, and he has conceded 16 runs. This time, good delivery coming into the batsmen around his pads, and inside edge almost goes towards the short square leg. Wicketkeeper is charging on it and returns ball back to the bowler. 1 more to the addition. Score goes up to now 48. Riaz Paul moves up to now 31, and Ejaz moved up to 10. Ejaz is on strike now. He will face Hilal. 5th ball to go in this over. Have a look on the fielding.
There is a straight deep point, long off, long on, deep mid wicket, deep skyleg. 5 fielders are patrolling and are at the catching positions. And we have fine leg up in the 30-yard circle here. Short gully. Third man is up in the 30-yard circle as well. We have a backward up point. Zad is there. A wonderful fielder, and so far not a good show, Umar, in terms of the fielding by KCA Bandipora, who lost the toss and were asked to bowl first. हाँ जी हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी कि उन्होंने निराश किया है अपनी ग्राउंड फील्डिंग से, और यही एक कारण है कि उनके कप्तान जो हैं अभी भी थोड़ा सा निराश दिखाई दे रहे हैं। और एक बार फिर से जहां पे 1 रन होना चाहिए था, वहां पे उन्होंने आराम से 2 रन अर्जित किए हैं दोनों बल्लेबाजों ने। और ख़ास तौर से जो बांडीपोरा की जो टीम है, उनसे इस तरह की अपेक्षाएं हम नहीं करते हैं। वो एक बहुत बढ़िया टीम है, काफ़ी बढ़िया स्तर पे वो क्रिकेट खेल के आए हैं, तो उन टीमों से इस तरह की गलतियां करने की गुंजाइश बहुत ही कम रहती है इस फॉर्मेट के अंदर। लेकिन आज उनके खिलाड़ियों ने थोड़ा सा निराश किया था। बहुत ही बढ़िया गेंद, कीपर बिल्कुल स्टम्स के आगे बैठे हैं कि वो कब बल्लेबाज का पैर हवा में उड़ जाए ताकि मैं उसका काम तमाम करूं। लेकिन शफी भाई, आप किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से पहले विकेट आउट होने के बाद उसके बाद बहुत अच्छी वापसी की है इन बल्लेबाजों ने, और किस तरह से आप उनको देख रहे हैं? अभी तक आपने सुबह से देखा है, मेरा मानना है कि बहुत अच्छी क्रिकेट उन्होंने खेली है। भले ही कैचिंग ड्रॉप हुए हैं, लेकिन हम उनको ये नहीं कह सकते उन्होंने अपने क्रिकेट बहुत अच्छा खेला है अभी तक। I think the Masters 11 who won the toss and decided to bat first. So far it is 50 on the board for the loss of 1 wicket, and over number 8 will be started. They have capitalized the situation. They are soaking up the pressure here, and it looks like that they are not in a rush of blood here. They are trying to go with singles, doubles, and bad balls will be punished. I think this is what 2020 cricket is all about. Sometimes if you don't have bad deliveries to face, there is some good bowling by the opponents, the batsman has to play sensible cricket, so that at the middle of the innings, at the end of the first innings, he will go for some big overs. This is what 2020 cricket is all about. यहाँ गेंदबाजी में एक और परिवर्तन देखने को मिलता हुआ। आरिफ को अब गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है, स्पिन आक्रमण अब आजमाया गया है, और ये देखना होगा कि वो किस तरह की गेंदबाजी। एक बार फिर से उठाने की कोशिश, शायद किनारा लगा था, एक बार फिर कैच ड्रॉप हुआ। कीपर से इस बार गलती हुई। I think every fielder has not contributed much more towards the bowlers. And talking about the wicketkeeper, this was a military medium pace, and it was well dropped, but there should have been taken. Although the wicketkeeper is staying very close, and this time trying to assault the bowler, plays towards the cow corner. One more to the addition now. Score goes up to now 51 for the loss of 1 wicket. Over number 8 is in progress. Talking about the bowling analysis of Hilal, he has bowled 2 overs, no made, 19 runs, and his economy so far has been 9.5. So he was bit expensive, and the fielding is the main issue for KCA Bandipora, Umar. जहाँ T20 के लिहाज से अगर आप ये आंकड़े तोलेंगे ना, हिलाल अहमद की 2 ओवरों में उन्होंने 19 रन दिए हैं, 9.50 की रन से उन्होंने प्रति ओवर के हिसाब से दिए हैं। इस बार ऊंचा लॉफ्टेड स्ट्रोक, गेंद गई दर्शक दीर्घा में, बहुत ही बढ़िया छक्का, और कितना बढ़िया संपर्क इस बार बैट और बॉल के बीच। और जो ही ये बल्ले से लगी थी और उसमें छक्के की छाप लगी थी, काफी बढ़िया छक्का ये। और जब आप इस तरह के शॉट्स खेलते हैं तो आपके अंदर जो वो हैं वो 7वें आसमान पे जरूर चढ़ जाती हैं, और एक बार फिर से वो सामना करते हुए स्पिनर का comes in this time, almost plays on drive shot towards the long on. A fielder comes from the long off, and he had to cover a lot of distance and saves almost 3 runs there. 1 more run to the tally now. Score goes up to 58. Ejaz moves up to now 19. He has faced 13 balls, 2 boundaries and a 6. Now Riaz Paul will face. There's a big appeal. It was looking quite close, but at the end it was denied by the umpire. No run results. It's end of over number 8. 58 on the board for the loss of 1 wicket. Masters 11 Ompura.
जी हाँ, इस गेंद में हल्की सी अपील हुई थी, लेकिन अंपायर में उस अपील का कोई भी प्रभाव नहीं थी। और शफी भाई, हम हमेशा बातचीत करते हैं इस T20 में। इजाज़ अहमद जो जब से ये आए थे बल्लेबाजी कर, उन्हें थोड़ा सा समय दिया अपने आप को, और ये शुभ संकेत है, क्योंकि अगर आप महान खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो आप अपने आप को थोड़ा सा समय दें, ताकि आपको ये पता चले कि पिच जो है वो किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं बल्लेबाजों के साथ। उसके अनुसार आप अपने बल्लेबाजी ज़रूर कर सकते हैं। और शुरुआत में उन्होंने संभल कर जरूर किया, अब तो पूरी आज़ादी के साथ वो खेल रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। If you talk about the Aijaz and his strength, cow corner is his strength. You cannot bowl fuller ones or ball around his pads. He will surely smack that to all the way through a long on or a cow corner. And talking about his batting analysis, about his that is his strike rate. He has faced first 11 balls and scored just 11 runs. On last 2 deliveries, he has scored 7 runs and 2 balls as faced. So finally his analysis is 13 balls and 19 runs. जी हाँ, T20 के लिहाज से ये बहुत ही अच्छे आंकड़े हैं। और यहाँ जिस तरह से ये साझेदारी पनप रही है, ये अच्छे संकेत नहीं है बांडीपोरा के लिए। और कहीं ना कहीं उनके कप्तान यही चाहेंगे कि अपनी गेंदबाजी से जितना हो सके इस साझेदारी को तोड़ा जाए। लेकिन ये क्रिकेट है और इसको अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। कब क्या होगा ये किसी को मालूम नहीं है, और इसीलिए ये खेल इतना लोकप्रिय खेल है। एक बार फिर से गेंदबाजों को विकेट, इस बार आगे आकर गेंद हवा में, लेकिन इस बार बहुत ही बढ़िया संपर्क, कितना खूबसूरत शॉट, गेंद गई दर्शक दीर्घा में, लाजवाब प्रदर्शन। Oh, this was biggest of all, and such a great assault on the bowler. Sends the ball in style all the way. It has taken lot of distance as well as height. Biggest one of the day. Hilal is on fire now. जहाँ अगर आप मिड ऑन के ऊपर से इस तरह का छक्का लगाते हैं तो ये एक बात दर्शाती है कि इस खिलाड़ी में कितनी काबिलियत है। और इस तरह के खिलाड़ी जब मैदान के अंदर खेलते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है कि इस तरह का प्रदर्शन करने में। इजाज़ अहमद अब 14 गेंदों में वो 25 रन पर पहुंच चुके हैं, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के मौजूद हैं। बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी। Now the strike rate of Aijaz is bulging up. It's 178.57. Magnificent. When he start the innings, the strike rate of Aijaz was around 95 to 100. So this is what, if you have bad deliveries, you can smash them and you can build up your innings as well as your strike rate. जहाँ कौन कहता है ये T20 फॉर्मेट ताकत का है? जी नहीं, अगर आप में नज़ाकत भी है। इस बार फाइन लेग के क्षेत्र में खेला गया शॉट, वहाँ फील्डर जरूर पीछे हैं, लेकिन अंपायर का इशारा कि ये गेंद जो है बाउंड्री लाइन के बाहर गई है, और इसलिए आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं अंपायर ने ये इशारा किया है कि ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। हालांकि ये भी शफी भाई फील्डिंग थी, कहीं ना कहीं निराश किया है उन्होंने अपनी फील्डिंग, ग्राउंड फील्डिंग से। I think the fielder tried his level best to go for to stop a ball here. He tried his level best. The outfielder through that side was bit wet, and because of a lot of a dew that we have had in the early morning. And inside edge, it's over the top of the backward up point, is racing into the fence for 4. Signals from the umpire Fayaz there. And now the Ompura Masters 11 Badgam have started assault on the opponents, and they are hitting all the decks here. 72 on the board, 1 wicket down, and the current run rate is 8.31. We are in the over number 9, Omar. Aijaz moved up to 33, 17 balls. Riaz Paul 32, 26 balls. Coming and talking about Aijaz, he came at number 3rd position. Just 11 balls. He was well composed. After that, he has retaliated all the bowlers. जी हाँ, T20 में समय बदलने में देर नहीं लगती है, और ये यही देखा गया इस समय। 9वां ओवर प्रगति पे और 72 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। एक बार फिर से बहुत ही खूबसूरत शॉट, जानबूझ के खेला गया शॉट, कलाइम के उपयोग से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, एक और चौवा, और 74 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। ये 9वां ओवर प्रगति पे अगर इसी प्रकार से वो यहाँ से खेल पाएंगे, इस समय जो रन रेट है वो 8.60 की रन से प्रति ओवर के हिसाब से रन बना रहे हैं। This ball was hitting on the leg stump. Batsman just shows the bat to the ball and beautifully flicks this ball as fine leg was up in the 30-yard circle. Ball races to the fence for 4. Now score moves up to 76. Aijaz moves up to, it's in the air, catches the call.
It is wicketkeeper underneath it. Finally, he has taken a good catch. जी हाँ, अंत में उन्होंने ये कैच लपका और इसी के साथ दूसरी विकेट का पतंग भी हुआ यहाँ। Masters 11 Ompura Badgam have lost their second wicket, and the batsman who was looking in a good touch finally is walking back to the dugout. And Masters 11 Ompura 76, 2 wickets down, and it's end of over number 9. जी हाँ, अंत में उन्होंने बहुत ही अच्छा कैच लपका और उतना आसान नहीं था ये, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने इस कैच को लपका और दूसरी विकेट का यहाँ पतन भी हुआ है। अब इस समय जो है उनकी टीम अब मैदान के अंदर इस समय हडल बनाई हुई है और यहाँ से उनका प्रयास यही होगा कि रणनीतियों पे जो है उन पे काम किया जा रहा है और यही आप अपने स्क्रीन पे भी इस समय देख रहे हैं। बांडीपोरा के जो खिलाड़ी हैं वो आपस में इस समय बातचीत कर रहे हैं कि शायद शफी भाई रणनीतियों पे ये काम हो रहा है और ये होना चाहिए। मैदान में अंदर आप एकजुट के साथ खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप में वो कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही ज़रूरी, तब जाके आप सफल होते हैं इस खेल में। Absolutely, communication and coordination is very, very important, and this is called as neuro psychic coordination. You should be mentally and physically well coordinated every time, and I think the misunderstanding between the fielders, whatever happened from the KCA Bandipura, there was a lot of floppy fielding, and it should not happen. Otherwise, the bowlers in the first initial stage of the first inning is, put them into the shackles and in the racks, and they could not, play some big shots. But once there was a misfielding, I think there was a dominance of the, batsmen over the fielders, over the bowlers as well, and finally I think they are nailing it at the moment. इजाज अहमद के आउट होने के बाद अब मैदान में जाहिद आ चुके हैं। देखना यही होगा कि वो यहाँ से अब किस प्रकार की बल्लेबाजी कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। हालांकि साझेदारी बहुत ही अच्छी जो है पनप रही थी मास्टर 11 ओमपुरा की ओर से, लेकिन उसमें तोड़ने में सफल हुए हैं। लेकिन यहाँ से अब यही देखना होगा क्या उन पे वो अब दबाव लेना चाहेंगे। इस बार अतिरिक्त उछाल मिलती हुई बैट्समैन खेलना जरूर चाहते थे लेकिन बीट हुए उस पे। स्पिन आक्रमण, ये आंकड़े स्टैट्स यही दर्शाते हैं कि इस मैदान में स्पिनरों का बोलबाला रहता है और यही भी मेरे विचार हैं जितना भी मैंने यहाँ क्रिकेट देखा है एक दर्शक के तौर पे। स्पिनर यहाँ कारगर। इस बार अपील बल्ले से पहली गेंद लगी थी, बैट एंड पैड लगी थी, अन्यथा ये करीबी मामला होता। Yes, it was bat and a pad, and it was almost a Yorker delivery. Well bowled, really well bowled, and the bowler should be appreciated for such kind of deliveries. Batsman tried to go for a big one, but there was miscommunication. Finally, take some part of the bat. Otherwise, this was looking deadly plump. यहाँ पॉल रियाज खेल रहे हैं और सुबह से ही वो बड़े शॉटों की चेष्टा रखते हैं और वो उसमें कामयाब भी हुए हैं। 32 रन पे खेल रहे हैं, अब केवल 18 रन उनको चाहिए अपनी अर्धशतकीय पारी को। क्या वो उसमें कामयाब होंगे? और अगर आप इस मंच पे उस तरह का प्रदर्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं खिलाड़ी के तौर पे आपको बहुत समय तक याद रहता है, क्योंकि ये 17वां एडिशन चंद्रहामा का, इसमें सभी महान खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और जब आप इस वेन्यू में रन बनाते हैं तो कहीं ना कहीं उन रनों का जो है वो अहमियत और भी बढ़ जाती है। और इसी के साथ खिलाड़ी नीचे हैं, देखना यही होगा। और इस बार उन्होंने गलती नहीं की और रियाज पॉल निराश होकर वापस जा रहे हैं। आरिफ ने एक बार फिर अपनी टीम के लिए झटका दिया है और इस बार बहुत बड़ी मछली जाल में रियाज पॉल वापस जा रहे हैं 32 रन बनाकर। Oh, big wicket is gone. Now he's walking back to the dugout. He was in terrific form, and finally some assistance is being displayed by the fielders at the moment here, because wicketkeeper has already taken a good catch, and after that the momentum comes in the fielders, and it looks like they are channelizing their energy in a good way here. This was not easy catch at the deep skylag region, and fielder came there underneath it. He had to wait for a long time, but his position was excellent, and finally he takes a good catch. जी हाँ, अब तो ये पूरी तरह से छा चुके हैं बांडीपोरा के खिलाड़ी और इसलिए आप अपने स्क्रीन में भी देख रहे हैं कि लगातार जो हैं वो हडल बनाए रखे हैं, क्योंकि वो बातचीत करते हैं आपस में।
खिलाड़ी, किस तरह की यहाँ रणनीतियाँ हम बनाते हैं और उन योजनाओं पे हम किस तरह का काम करते हैं, उसी पे इस समय बातचीत होती है मैदान के अंदर। जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो खिलाड़ी इस समय कर रहे हैं। टॉस जीता था मास्टर 11 ओमपोरा। आज सुबह उनके कप्तान ने टॉस जीता और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और सलामी जोड़ी के तौर पे आई थी रियाज पॉल और इम्तियाज़ अहमद। रियाज पॉल जो हैं अभी भी आउट हुए, जिन्होंने 31 गेंदों में 32 रन बनाए हैं। इम्तियाज़ अहमद ने थोड़ा सा निराश किया था, 10 गेंदों का उन्होंने सामना किया और केवल 6 रन बनाने में वो कामयाब हुए, जो नासिर लॉन का शिकार बने। हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि आप इस पेज को शेयर करते जाएं ताकि और भी जो हमारे साथ लोग हैं वो भी जुड़ जाएं। आप अपना प्यार हमारे विपरीत ज़रूर दर्शाएं, यही हमारी आशाएं हैं आपसे जो हमारे साथ जुड़े हैं। शफी भाई। Yes, absolutely. We would love that the people on the social media will surely, who are, connected and who are, tuned with Kashmir Supports Watch, and we hope that they will share this page so that everybody from Kashmir will come to know about the 2020 cricket, which is being played at SNW Memorial Ground, the standard of cricket, and hopefully in the next year we are going to start a turf wicket here. And this year, 64 teams are participating. This is the 17th edition in process, and it looks like every team is much more excited every time to take part in this tournament, and we love to host them. जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। और अब जो समय है शफी भाई, यहाँ से गेंदबाजी सही करने की ज़रूरत है, क्योंकि 2 खिलाड़ी जो हैं एक तरह से वो नए हैं। यहाँ से वापसी करने का एक बहुत बड़ा मौका है उनके पास, एक बहुत बड़ा अवसर है उनके पास। अब सही योजनाओं पे काम करने की ज़रूरत। Half of the innings is gone. It is 76. 3 wicket is down, and let's have a look. The batsmen who have been sent back to the dugout. Riaz Paul, 31 balls has faced 32 runs at the strike rate of 103 with 4 boundaries and 1 6. He stayed at the crease 49 minutes. Imtiaz lefty, he has just scored 6 runs, 10 balls, 1 6, and his strike rate was around 60, and he stayed at the crease around 18 minutes. Talking about Ajaz, he was looking bit slow at the initial of his innings, but at the end 19 balls, 37 runs, 5 boundaries, 2 sixes, and his strike rate was 194, and he stayed at the crease around 26 minutes. So now another batsman walks down the middle here. It is Zahid. Along with him is another batsman, Feroz. Now Zahid will face the first ball of the 11th over Umar. जी हाँ, उनके कप्तान अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। एक जिम्मेदारी उनके ऊपर है, और कहते हैं ना कि कप्तान की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है टीम में, और उनकी भूमिका यहाँ से यही है कि एक साझेदारी बनाने में वो कामयाब हो सकते हैं या नहीं, यही हमारी निगाहें उनके ऊपर हैं। स्ट्राइक पे उनके कप्तान हैं फिरोज़ अहमद, जिन्होंने 1 गेंद का सामना किया है। अभी तक उन्होंने खाता नहीं खोला है, और 2 खिलाड़ी नए हैं मैदान के अंदर, और देखना यही होगा कि जो बांडीपोरा के जो खिलाड़ी हैं वो किस तरह की वापसी यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों खिलाड़ी जो हैं वो नए हैं। उन्होंने कोई भी रन अभी तक नहीं बनाया, और इस बार हल्का सा दिशा से भटके और फ़ायदा नहीं उठा पाए वहाँ खिलाड़ी, लेकिन 1 रन से जो हैं रोक नहीं पाएंगे। और इस 1 रन के साथ 77 रन बोर्ड पे ये 11वां ओवर प्रगति पे हैं। 77 पे 3 यहाँ मास्टर 11 ओमपोरा के टीम। यहाँ एक साझेदारी की सख्त ज़रूरत है उनको। तालिब हुसैन गेंदबाजी करते नज़र आ रहे हैं आपको, जो अपने कोटे का दूसरा ओवर करते नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने 19 रन दिए हैं। बहुत ही महंगा साबित हुआ है ये अभी तक। इस बार पटकी हुई गेंद, करीबी मामला होता, लेकिन अंपायर के मन में कोई संदेह नहीं और पूरी तरह से नकारा इस अपील को। गेंद तो लगी थी, शायद चेस्ट के साथ ये गेंद जाके टकराई थी, और इसीलिए अंपायर ने इस अपील को पूरी तरह से नकारा। बहुत ही बढ़िया उछाल के साथ, और जितना भी हमने सुबह से इस खेल को देखा है, सामान्य उछाल हैं, स्पॉट विकेट हैं, रनों के लिए बहुत ही बढ़िया विकेट हैं, अगर आप अपने आप को थोड़ा सा समय देंगे तो।
इस बार एक बार फिर से गेंद हवा में, लेकिन भाग्य ने एक बार फिर साथ दिया है। गेंद वहाँ पे गिरी जिसको आप नो माइनस लैंड कहते हैं, जहाँ पे कोई फील्डर तैनात नहीं था, अन्यथा ये करीबी मामला होता। और इस 1 रन के साथ 78 रन बोर्ड पे, ये 11वां ओवर प्रगति पे है। अभी भी 3 गेंद शेष है इस ओवर के। जाहिद और फिरोज उनके कप्तान मैदान के अंदर हैं। फिरोज जो बाएं हाथ के खिलाड़ी हैं, बहुत ही अच्छी और गाइड किया थर्ड मैन की दिशा की ओर से। वहां जब तक कि फील्डिंग की जाते 1 रन से रोक नहीं पाएंगे वहां दोनों बल्लेबाजों को। और हम अपने सभी व्यूअर्स को ये बताना चाहेंगे कि आप इस पेज को शेयर करते रहे, ताकि जो अन्यथा लोग हैं वो हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। हम आपसे ये निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारे बीच वो सम्मान जो हैं वो ज़रूर जताए। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी। अब यहाँ से तो यही लग रहा है कि वो बड़े शॉट खेलना चाहते हैं, और अंपायर ने ये इशारा किया कि ये नो गेंद है, यानी कि फ्री हिट का मौका दिया जाएगा यहाँ बल्लेबाज को। और देखना यही होगा कि उसमें ये कितना कामयाब होंगे। 80 रन बोर्ड पे लग चुके हैं और 3 खिलाड़ी उन्होंने खोए हैं मास्टर 11 ओमपोरा ने। यहाँ 2 खिलाड़ी नए अभी भी आए हैं मैदान के अंदर, उतना आसान नहीं होगा। और इसीलिए आप ये देख रहे हैं कि फ्री हिट गेंद भी डॉट हुई हैं, उतना आसान नहीं होगा। और यही तो हम सुबह से कहते हैं कि जब जब नए खिलाड़ी आते हैं मैदान के अंदर, उनको उतना आसान नहीं होगा खेलना। ये खेल ही साझेदारियों का है। आप एक भागीदारी बनाने का पूरा प्रयास करें, तब जाके आप एक बड़ा लक्ष्य बना सकते हैं। लेकिन अभी तक ये जो 2 खिलाड़ी हैं थोड़ा सा जल्दबाजी में दिखाई दे रहे हैं। इस बार शॉर्ट गेंद रक्षात्मक तरीके से खेला। डीप पॉइंट पे खिलाड़ी ज़रूर तैनात हैं और इस 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। इस 1 रन के साथ 81 रन बोर्ड पे 11 ओवर की समाप्ति के बाद 81 पे 3 मास्टर 11 ओमपोरा की टीम। 2 खिलाड़ी इस समय मैदान के अंदर हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं कि यहाँ से वो इस पारी को आगे किस तरह से लाएंगे। 81 पे 3 हैं मास्टर 11 ओमपोरा की टीम। शफी भाई, 11 ओवर की समाप्ति पे 81 पे 3 हैं, आप किस लक्ष्य की ओर देख रहे हैं यहाँ? It's 81 for the loss of 3 wickets here, and the current run rate is talking about the current run rate. It is 7.36, and before 2 overs it was 8.44. So it has now came down. Good delivery here. It was a googly one, striking on the pads and missing the stumps there. There is no run. Score stays on 81 for the loss of 3 wickets. Over number 12th is in progress here. Talking about the bowlers, now another bowler has been brought into the attack now. And so far 1, 2, 3, 4, 5, 6 bowlers have been utilized by KCA Bandipora. Comes in good in length this time, sends the ball and finds the fielder Zaid at the short point. There is no run. Score stays on 81 for the loss of 3 wickets. Kindly, this is Shafi, and requesting you all the people to share this page much more, so that we will be connecting huge number of people through Jammu and Kashmir. Once again, sends the ball in style. It's all the way through the cow corner. Fielders can only watch how the ball will go outside the fence for a 6. जहाँ एक निमंत्रण था उसको उन्होंने पूरी तरह से स्वीकारा। बहुत ही आगे गेंद गिरी थी और घुटना जमीन पे रखा था। मिड विकेट के ऊपर से बहुत ही खूबसूरत शॉट, बहुत ही दूर गया ये छक्का। Before this, Arif has 2 overs and he conceded just 8 runs in those 2 overs. Snipping down the line once again, shorter in length, sends in style magnificently through the deep fine leg fence. 2 bounces into the fence for 4, back to back. Assault here on the bowler now. Arif looks under pressure now, and the batsman Feroz, captain of the side, is in a good touch. Zahid and Feroz are at the crease. Score moves up to now 91, and the current run rate has developed up now, Umar, from 7.2 to 7.80, and score goes up to now 91 for 3.
Once again, good line from the bowler, and batsman reads it perfectly and sends the ball towards the short cover. There was all the time, ample time for batsman to go for a single. One more to the tail. His score moves up to now 92 for the loss of 3 wickets, and 11th over is in progress. We have just one ball in this over. Last ball to go in 12th over now. अभी तक ये महंगा ओवर साबित हुआ है इस स्पिनर का, क्योंकि ये खिलाड़ी जो इस समय मैदान के अंदर खेल रहे हैं, बल्लेबाजी की हम बात करें, बहुत ही सुजले हुए बल्लेबाज शफी लग रहे हैं। छक्के के बाद उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की, इससे पता चलता है कि कितनी काबिलियत है इन खिलाड़ियों में। Yeah, exactly. Oh, that was nipping down the leg. Maybe a leg by signal from the umpire. Let's wait. No, it's one more run to the total now. Score goes up to 92 for the loss of 3 wickets, and that marks the end of 12 overs. So we have 48 balls now. It looks like they should not score less than 160 here, Omar, and the projected score looks like it would surely go beyond 150. जहां 8 ओवर का खेल यहां से बचा है, और मुझे लग रहा है कि अगर वो 170 का लक्ष्य बनाने में वो कामयाब नहीं हुए तो निराश होंगे मेरे विचार में। 93 रन बोर्ड पे लग चुके हैं 12 ओवर की समाप्ति के बाद, और यहाँ से उनकी कोशिश यही होगी कि कम से कम 170 का आंकड़ा वो ज़रूर छुए। लेकिन ये क्रिकेट है, इसमें सारी प्रेडिक्शन जो हैं फेल हैं। कब क्या होगा ये किसी को मालूम नहीं है, और ये गिलगित की तरह रंग बदलता है इस खेल में, और इसीलिए इस खेल में हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये दो खिलाड़ी बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। जाहिद और उनके कप्तान, जाहिद ने 3 गेंदों का सामना किया है, 3 रन बनाने में वो कामयाब हुए। उनके कप्तान 11 गेंदों का सामना किया, 13 रन बनाने में वो अभी तक कामयाब हुए हैं, जिसमें एक छक्का और एक चौका भी मौजूद हैं। 118 की स्ट्राइक रेट से वो अभी भी मैदान के अंदर खेल रहे हैं। T20 के फॉर्मेट के हिसाब से ये बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट है। इस बार बहुत बढ़िया शॉट, कवर और पॉइंट के बीच से निकाला गया शॉट, रोकना मुश्किल होगा, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। बहुत ही खूबसूरत शॉट, दर्शनीय शॉट। और शफी भाई, हम बात ही यही कर रहे थे कि इस खेल में आपको ताकत की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस तरह के शॉट्स भी हैं तो आप कामयाब सिद्ध हो सकते हैं। ये दिखाया है इस खिलाड़ी ने। 2020 cricket is all about skills and art. This batsman looks a good artist and executed that shot in a style and find is the placement to throw backward point and point and sends in style for 4. Magnificent shot from Zahid. Score moves up to 97 for the loss of 3 wickets. Over number 13th is in progress. Comes in, balls to the left-hander once again, pulled it beautifully. There is no protection in the deep. It's all the way for 4. Wonderful shot from the left-hander batsman, and he looks on fire now. Score goes up to 101 for the loss of 3 wickets. Now it is triple figure for the Masters 11 Ompura Badgam here at the SNW Memorial Ground in 17th edition. They won the toss, decided to bat first. जी हाँ, जो उनके कप्तान ने टॉस जीता है और उसको वो पूरी तरह से अभी तक स्वीकारते हैं, और उन्होंने उसका पूरा फ़ायदा उठाया है। 13वां ओवर प्रगति पे हैं और 101 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, और लगातार बड़े शॉट खेलने में वो अभी तक कामयाब हुए हैं। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद और सम्मान के साथ उन्होंने थर्ड मैन की दिशा में खेला 1 रन के लिए, और बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी। और अगर हमारे साथ कोई युवा खिलाड़ी जुड़ चुके हैं जो हमारे व्यूअर्स में से हैं, तो इस तरह की बल्लेबाजी जब होती है तो उसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है शफी भाई, क्योंकि ये बड़े शॉटों पे निर्भर नहीं रहते हैं। जब उनको मौका मिला है, उन्होंने सिंगल डबल से भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है अभी तक। बिल्कुल, हम माजरत चाहते हैं कि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से अभी हमें थोड़ी सी एक यहाँ पर जो है कैमरा में कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, तो हम माजरत चाहते हैं दर्शकों से और क्रिकेट शायकीनों से, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं क्रिकेट से और काफ़ी ज़बरदस्त शौकीन है क्रिकेट के। खासकर कश्मीर के लोग जो है वो बहुत प्यार करते हैं। और अगर पूरी कंट्री की बात करेंगे, बहुत ज़बरदस्त रनिंग यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के बीच में से जो तालमेल है वो बहुत खूबसूरत है। इस तरह से स्कोर जो है वो पहुँच चुका है 104, और 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। और अगर बात करेंगे यहाँ पर बल्लेबाज की, जो जाहिद और फेरोज है, दोनों अच्छे लाइव में नज़र आ रहे हैं। बस ये है कि थोड़ा सा इनिंग्स को और स्ट्रेच करे ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा रन्स कंट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पर ओमपुरा बडगाम मास्टर 11 के लिए, ताकि एक अच्छा यहाँ पर जो है स्कोर खड़ा करेंगे।
पहले इनिंग्स में यहाँ पर बहुत अच्छी गेंद डाली थी यहाँ पे, और स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर गेंदबाज। किसी रन का इजाफा नहीं, स्कोर बदस्तूर 104, 3 विकेटों के नुकसान पे। और तारीफ करनी होगी यहाँ बल्लेबाजों की, और ये कितनी बहुत अच्छी गेंद थी, बिल्कुल विकेटों के जड़ के अंदर थी। उन्होंने सम्मान के साथ रक्षात्मक तरीके से खेला। रन हालांकि नहीं हुआ, लेकिन सम्मान देते हैं सही गेंद का। इस बार विद मिली थी, खेलना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से बीट हुए, और इसी के साथ 13 ओवर की समाप्ति के बाद 104 रन 3 विकेट के नुकसान पर मास्टर 11 ओमपुरा की टीम। और इसी ओवर में उन्होंने कितनी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट की, आंखों में इशारा करके उन्होंने 2 रन अर्जित किए थे। वहाँ पे बहुत बढ़िया क्रिकेट देखने को मिलता है, और ये देख के अच्छा लगता है कि हमारे जे में इस तरह के खिलाड़ी भी होते हैं जो इस स्तर पे इतना अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। देखो, अगर पिछले मैच की बात हम करेंगे, यहाँ पर एक जो बिजबिहाड़ा ब्लूज की टीम है, जो शौकत ब्लूज बिजबिहाड़ा की टीम है, उन्होंने 183 रन यहाँ पर खड़े किए थे पहली इनिंग्स में। लेकिन उनके सामने जो बहुत ज़बरदस्त टीम थी वो है फ्रेंड्स मोटर्स नारवल। बहुत अच्छी टीम है जिनके साथ जहांगीर लोन, जिनके साथ इश्तियाक नाग जैसे खिलाड़ी खेलते हैं। लेकिन वो टीम जो है उसको कंपटीशन से बाहर किया गया क्योंकि उस स्कोर को वो चेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस समय जो बारिश का जो मसला हुआ था, डकवर्थ लिव्स का जो क्रिकेट रूल है उसको अप्लाई होना ज़रूरी था। लेकिन उस लिहाज से वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाए उस प्रेशर को, क्योंकि काफ़ी रश में थे। 10 ओवर में मैच वो जीत रहे थे। तो खिलाड़ी को हर चीज़ फोकस करना चाहिए बल्लेबाजों को कि कहीं ना कहीं जो मौसम है कभी भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि मौसम एक ऐसा चीज़ है जिसपे एक ऑर्गेनाइजिंग बॉडी या लोग जो है इस पर कोई इख्तियार आपको नहीं है, कभी भी मौसम बदल सकता है। मुझे लगता है कि जो खिलाड़ी है प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप सिर्फ SNW 2020 ट्रॉफी खेल रहे हो, बल्कि आपको कल JKCF को रिप्रेजेंट करना है, रणजी ट्रॉफी आपको खेलना है। बड़े बड़े स्टार्स हमारे IPL में खेले हैं, जैसे हमारे परवेज भाई है जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है और उसके बाद IPL में भी बहुत सारे मैचेस खेले हैं। उसके बाद नए नए खिलाड़ी राशिक सलाम आए, और पिछली बार अगर आप देखेंगे कि अब्दुल समाद ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि सारे जो खिलाड़ी हैं उनको चाहिए कि वो फोकस करे गेम पे और प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाए, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड महेंद्र सिंह धोनी दिखाते थे विकेटों के पीछे। और इस तरह का जो आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करोगे हमेशा, तो मुझे लगता है कि आप बहुत आगे जाओगे। अगर पिछले मैच की बात करेंगे तो पहला मैच हमने यहाँ पर जो है वो लाइव किया था, जिसमें 1 लाख और तकरीबन 15,000 के आसपास व्यूअर्स हुए केवल 2 दिन में। तो मुझे लगता है बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट है कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच और इसकी पूरी फैमिली के लिए। हालांकि कोई कंपटीशन हम नहीं देना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि हम SNW से एक बहुत अच्छा क्रिकेट दे, ताकि जो लोग हैं एक उनको पता चले कि स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट है वो बहुत ज़बरदस्त है। और नॉर्थ कश्मीर में जो क्रिकेट है इसकी जो लेवल है वो बहुत ऊपर है, और हम चाहते हैं कि साउथ से लेकर नॉर्थ और ईस्ट से लेकर वेस्ट सारे खिलाड़ी इस SNW में आए और यहाँ पर खेल को एंजॉय करें। हमें उम्मीद है कि जो हमारे साथ इस समय जुड़े हैं व्यूअर्स, वो हमारे सहयोगी कमेंटेटर जो शफी परा हैं, अंग्रेजी कमेंटेटर हैं ये SNW के। हमें उम्मीद है कि वो उनके विचारों को सुने होंगे, और इंशाल्लाह आशा हम यही करते हैं कि वो उस पर ज़रूर सोच विचार करें। और बहुत अच्छे जिनको हम सुनहरे क्षण गोल्डन वर्ड्स वो कह रहे थे, हमें उम्मीद है जो हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े थे वो उसको ज़रूर सुने। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद हल्की सी नीचे रही थी, गाइड करना चाहते थे लेकिन सफल नहीं हुए हैं। ये 14वां ओवर प्रगति पे हैं, 108 रन। शायद आपने नहीं देखा जो बल्लेबाज वो बाल बच गए थे, वहां पर इनसाइड एज लगा था। मुझे लगता है कि शायद 2 सेंटीमीटर की दूरी पे गेंद थी ऑफ स्टंप से, वरना यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा विकेट हो सकता था, जाहिद आउट हो सकते थे। बहुत अच्छी गेंद डाली थी, ज़्यादा विड्थ ऑफर नहीं कर रहे हैं। तो क्रिकेट में जो कमेंट्री हम करते हैं ये ज़रूरी नहीं कि हर बार आप सिर्फ इंग्लिश में करोगे, हिंदी में करोगे, उर्दू में करोगे। मुझे लगता है कि अपने लैंग्वेजेस पे हमें ज़्यादा जो है प्यार मोहब्बत रखनी चाहिए। हमारी मदर टंग कश्मीर है, कभी मैं चाहता हूँ कि मैं कश्मीरी में भी कमेंट्री करूँ, लेकिन आपको कभी कभी ऐसा बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी मिलता है, तो कमेंटेटर को जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा जो है वो गड़बड़ हो सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम क्रिकेट को अच्छी तरह पेश करें लोगों के सामने। लेकिन उमर अगर बात करेंगे हमारे क्रिकेटर्स की, खासकर कश्मीर वैली की क्रिकेटर्स की, और मुझे लगता है कि फिटनेस मसाइल काफ़ी ज़्यादा है, लड़के ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रहे। अगर आप इस ग्राउंड की बात करेंगे, हमने नेट प्रैक्टिस के लिए भी वार्म अप के लिए भी यहाँ पर 2 टर्फ और सीमेंटेड विकेट बनाया है, ताकि लड़के जो है वो मेहनत करेंगे। वार्म अप
स्ट्रोक के लिए। यहाँ पर खराब गेंद डाली थी और दिशा से बढ़ गए और शॉर्ट गेंद डाली थी, और यहाँ पर जो बल्लेबाज फेरोज है बहुत ज़बरदस्त अंदाज में इस गेंद को लपक झपकते भेज दिया है सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो मैं बात कर रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि लड़के जो है कि वो मेहनत ना करें, मेहनत के बगैर आप आगे नहीं जा पाओगे। देखो परवेज़ भाई की अगर बात करेंगे, परवेज़ रसूल, मंजूर पांडो, राशिक सलाम, अब्दुल समाद, सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, तब जाके वो IPL से लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट तक पहुंच चुके। खासकर परवेज़ भाई की अगर बात करेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और परफॉर्म करने से पहले आप एक अच्छे एथलीट होने चाहिए। अगर आप में एक अच्छा एथलीटिज्म नहीं हो, मुझे लगता है कि आप अच्छे खिलाड़ी कभी नहीं बन पाओगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही शब्दों का इस्तेमाल किया, और मैं हमेशा सोशल मीडिया पे सक्रिय रहता हूँ। और ज़ुबैर भाई जो BCC रेडर्स बारामूला के जो कप्तान हैं, उन्होंने एक पोस्ट साझा किया था सोशल मीडिया में कि शायद 300 युवा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था ट्रायल के द्वारा, और उसमें केवल 60 या 75 खिलाड़ी फिटनेस टेस्ट में पास हुए। और ये दर्शाता है कि युवा खिलाड़ियों को कितनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और हमें उनसे आशाएं हैं कि अगर हमारे साथ कोई युवा जुड़ रहे हैं कि उनको वो चाहिए कि वो उस पर ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, आप में टैलेंट हैं, आप में तकनीक है, आप में टेम्परामेंट है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने फिटनेस पे खासा ध्यान देना होगा, तब जाके आप ऊपरी लेवल पे खेल सकते हैं। हालांकि हमें ये अच्छा लगता है कि जब हमारा कोई भी J&K का खिलाड़ी ऊपरी लेवल पे खेलता है, तो कहीं ना कहीं जो सपोर्ट्स पर्सनालिटीज़ होती हैं उनको वो चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है। उनके जो कप्तान हैं फिरोज़ अहमद, उन्होंने कप्तानी पारी ज़रूर खेली है, हालांकि अभी भी वो नाबाद हैं। 16 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 20 रन बनाने में वो कामयाब होंगे, और उसका साथ दे रहे हैं जाहिद जिन्होंने 10 गेंदों का सामना किया, 19 रन बनाए, और जिसमें 3 चौके भी मौजूद हैं। 190 से अधिक स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे हैं, जो T20 के लिहाज से बहुत ही बढ़िया आंकड़े ज़रूर आप कह सकते हैं। देखो अगर बॉलिंग की बात करेंगे, बॉलिंग एनालिसिस इनिंग्स की शुरुआत खुर्शीद ने की थी, 2 ओवर डाले, कोई मिड नहीं, 16 रन दिए। खान उसके बाद लोन नासिर जिन्होंने 3 ओवर किए, 1 विकेट लिया और 15 रन दिए, और 1 मेडन ओवर भी किया। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे हिलाल की, बहुत अच्छी गेंदबाजी उन्होंने भी की, हालांकि थोड़ी सी एक्सपेंसिव ज़रूर साबित हुए। 3 ओवर में 31 रन दिए। आरिफ ने 3 ओवर किए, 34 रन दिए और 1 विकेट हासिल किया। और तालिब ने 3 ओवर किए, 34 रन दिए और 1 विकेट हासिल किया। उसके बाद खालिद जो है उनको अब लाया गया है गेंदबाजी के लिए। खालिद ने इस ओवर में 1 गेंद डाली और किसी भी रन का कोई इजाफा नहीं। स्कोर बदस्तूर जानना चाहूंगा यहाँ पर 116, 3 विकेटों के नुकसान पे इनिंग्स का ये 15वां ओवर शुरू हो चुका है उमर, जहाँ काफ़ी बाजों को आजमाया गया, और इस बार काफ़ी खराब गेंद और उसको सही नसीहत सुकेर लेग के ऊपर से बहुत ही दर्शनीय शॉट, और गेंद दर्शक दीर्घा में जाके गेंद को उठा के लाई। बहुत ही खूबसूरत छक्का, और कितनी सहनशीलता के साथ उन्होंने इसको खेला है। बिल्कुल उनको दिमाग में कोई भी विचार नहीं था, इंटेंट बिल्कुल क्लियर था, और उन्होंने इस गेंद को दर्शक दीर्घा में जाके लगाया। और सही फरमाया उमर आपने, क्योंकि अगर आप फेरोज की बात करेंगे कि लेग स्टंप पे आप उनको गेंद नहीं डाल सकते। अगर यहाँ पर गेंद जो है स्टैंड्स के साथ लग जाएगी कभी, तो डेड बॉल का रूल बनाया गया यहाँ पर। एक बार फिर मैं बताना चाहूँगा ये सारे क्रिकेटर्स को, सारे लोगों को जो हमारा क्रिकेट देख रहे हैं यहाँ पर SNW से, हमारा एक रूल है कि जो स्पाइकर होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में, अगर आप उस कैमरे के साथ कभी शॉट लग गया तो गेंद डेड है। यहाँ भी वही रूल है। अगर आप लाइव कवरेज दे रहे हो SNW से, तो या किसी भी ग्राउंड से मैं बात कर रहा हूँ, चूंकि SNW की यहाँ पर हो रही है, तो अगर गेंद कभी स्टैंड्स या ट्राइपॉड के साथ लग गई तो गेंद को डेड करार दिया जाएगा। लेकिन बाद में फेरोज की करा था लेग स्टंप पे आप उनको ज्यादा गेंदें मत डालो, क्योंकि तीसरा चौका उन्होंने वहां से जाड़ा है और बहुत खूबसूरत छक्का उन्होंने लगाया था। हालांकि गेंदबाज जो गेंद को थोड़ा सा फ्लाइट देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चूक गई वहां पर दिशा से बढ़ के, और बहुत अच्छी शॉट इस बार खेला है, बहुत अच्छा शॉट, और 1 रन मुकम्मल किया इस बार कलाई के उपयोग से शॉट खेला गया। वहां खिलाड़ी को तैनात किया जरूर गया है कप्तान के द्वारा, लेकिन एक रन से रोक नहीं पाएंगे, और इस 1 रन के साथ 125 रन बोर्ड पे ये 15वां ओवर प्रगति पे हैं। हम अपने सभी व्यूअर्स को ये कहना चाहते हैं कि आप इस पेज को शेयर ज़रूर करें, ताकि जो अन्यथा लोग हैं वो हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। आप हमारे लिए जो हैं वो चीज़ ज़रूर करें, ताकि और भी जो लोग हैं वो इस पेज के साथ ज़रूर जुड़े।
देखो अगर बात करेंगे अपोनेंट्स की, उनके पास जो जैद डार है, पिछली बार मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड उनको दिया गया क्योंकि उन्होंने एक सेंचुरी भी बनाई थी, बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं पिछली बार वो इस क्लब के साथ नहीं खेल रहे थे। जैद डार एक ऐसे खिलाड़ी है जो बहुत बड़े रन स्कोर करते हैं। उन्होंने अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 क्रिकेट खेला है और उम्मीद करते हैं कि वो आगे जाएंगे और JKCA को रिप्रेजेंट करेंगे। अंडर 23 की कॉल के लिए वो इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत बड़े सितारे हैं हमारे सामने जो इस ग्राउंड से निकले हैं और JKCA के अलावा उन्होंने रणजी ट्रॉफी भी बहुत ज़बरदस्त खेला है। जी हाँ, हमारी टीम की ओर से उनको ढेर बड़ी शुभकामनाएं। इंशाल्लाह हम यही चाहेंगे कि वो आगे ज़रूर जाएं और बड़े स्तर पर खेले। इस बार काफ़ी ख़राब गेंद, अंपायर अभी तक उनका निर्णय आना बाकी है कि वो शायद, जी हाँ, शायद बल्ले से वो रन आए हैं और बहुत ही खराब गेंद, और उसको सही नसीहत देते हुए 115वां ओवर के समाप्ति के बाद 132 रन बोर्ड पे। लेकिन कहा यही जा रहा है शफी भाई, अब केवल 5 ओवरों का खेल बचा है। आपके विचार में किस लक्ष्य की ओर देख रहे होंगे मास्टर 11 ओमपोरा की कप्तान? Yeah, if you're talking about the current run rate of Ompora Badgam, who won the toss and decided to bat first, they have a very good team, and I think the middle order is, looking in a good touch, and the late middle order, Zahid and Feroz are in a good position now. Zahid has faced 13 balls, 24 runs, 4 boundaries, and Feroz, captain of the side, 27 runs out of 19 balls, 2 boundaries and 2 sixes. Both the batsmen are looking in a spectacular, fashion, and they have been sending the ball to all the sides of the park. The current run rate is 8.80, and if we will be talking about the current run rate, the projecting score will be more than 160 or around 170. But for me, it looks like that the score will be more than 180 because we have yet to 30 balls to go in the first innings here, as it is 132 on the board for the loss of 3 wickets. Talking about the bowling, Khurshid started the proceedings for the team KCA Bandipura. 2 overs, no maiden, 16 runs and no wicket. His economy has been 8. And next bowler was Loon Nasir. He was magnificent, and he was bowling at the perfect line. 3 overs, 1 maiden, 15 runs, 1 run, and his economy has been 5. Hilal was the next bowler. 3 overs, no maiden, 31 runs, no wicket. He was expensive. Arif, 3 overs, 1 maiden, 20 runs and 1 wicket. His economy has been 6.67. And talking about the Talib, who has bowled 3 overs, 34 runs, 1 wicket, and he was the most expensive bowler. 11.33 he has been his economy. And Khalid, 1 over, 14 runs, and it looks like Khalid is more expensive bowler of the day. So far they have utilized 1, 2, 3, 4, 5, 6 bowlers. It looks like that the bowlers tried their level best, but the once the 6 overs gone after the end of the power play, they came back in terms of the fielding because it was a floppy show in the power play. 3 catches were dropped, and once the bowler will not be assisted by the fielders, they will not be accompanied by a good fielding. It looks like the bowlers come in a distress, they come in a lot of pressure, and their confidence is being shaken, and that is why every time the bowler should be assisted very well by the fielders. That is why the captain is very, very important in giving the fielding positions to all the fielders at their respective places, and they have to execute it very properly. Goes for a Dil scoop shot, misses it Feroz, and the batsman wanted to send the ball towards the third man Fanas. As he watched Omar, there was no protection in the deep, but good bowling by the bowler at the moment. There is no run, score is 132 for the loss of 3 wickets. Over number 16th is in progress. इस बार कुछ अतिरिक्त करना चाहते थे, लेकिन एक बार फिर वो नाकामयाब हुए हैं, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह के शॉट्स खेलने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने आगे रन जरूर बनाए हैं और इस तरह के शॉट्स आप नहीं खेल सकते हैं। जो आपकी ताकत है आप उसी पे निर्भर रहे ताकि आप जो हैं आप सफल होएं इस खेल में। और ये 16वां ओवर प्रगति पे हैं, 132 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। 3 खिलाड़ी उन्होंने खोए हैं। मास्टर 11 ओमपुरा इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनके कप्तान ने आज सुबह टॉस जीता था और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। कुछ हद तक उन्होंने उसको सही साबित भी किया है। अगर 170 का वो आंकड़ा छुएंगे तो वो उसको एक अच्छा लक्ष्य माना जाता है। इस बार
कैच और इस बार कोई गलती नहीं की वहां पे। और ये चौथी विकेट का पतंग, वो इस बार कप्तान वापस लौट रहे हैं फिरोज अहमद, जिन्होंने 21 गेंदों का सामना किया और 27 रन बनाए हैं। शफी, ये एक बहुत बड़ी मछली जाल में, क्योंकि इस समय इस खिलाड़ी का आउट होना कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी विजय है बांडीपोरा के लिए। देखो, अगर आप गेंदबाजी की बात करेंगे, जो गेंदबाज है उन्होंने लगातार जो है गेंद जो है सटीक निशाने पे डाली है। और फेरोज जो है पिछले ओवर से जो है लगातार परेशान थी, इस बार शॉर्ट गेंद डाली थी और वो चाहते थे कि एक्स्ट्रा कवर जो है वहाँ पर ज़्यादा वो टारगेट कर रहे थे, लेकिन कप्तान का कैच जो है वो कप्तान ने ही पकड़ लिया। वहाँ पर अच्छी फील्डिंग वहाँ पे की है शॉर्ट कवर पे। इस तरह से इस बल्लेबाज का रास्ता दिखाया पवेलियन की ओर, और इस तरह से नए बल्लेबाज नमूदार हुए हैं। अभी भी इम्तियाज मल्ला का आना बाकी है। मास्टर्स 11 ओमपुरा बडगाम का स्कोर पहुंच चुका है 132 रन, 4 विकेटों के नुकसान पे इनिंग्स का ये 16वां ओवर चल रहा है। इस ओवर में अभी तक 3 गेंदें हो चुकी है और ये विकेट जो है ये खालिद ने लिया है। शायद अभी हम देखना है, खुर्शीद ने विकेट लिया है। खुर्शीद का पहला विकेट है और खुर्शीद ने अभी तक उनकी गेंदबाजी अगर करेंगे उनकी बात, तो उन्होंने 2.3 ओवर किया है, कोई मेडन नहीं, 16 रन और 1 विकेट उन्होंने हासिल किया है कप्तान फेरोज का। और लेट मिडिल ऑर्डर में जो उन्होंने बल्लेबाज यहाँ पर आउट किया, अब ये मुझे लगता है कि टेलेंडर्स का काम जो है वो शुरू हो चुका है यहाँ पर। इट विल बी दी इनिंग्स ऑफ द टेलेंडर्स नाउ, दे विल बी जॉइनिंग जाहिद देयर, अनदर बैट्समैन इज कमिंग देयर, comes down the track, assaulted the bowler at the moment. It's all the way, it's gone through the cow corner for a 6. Doesn't matter for the batsman, he is facing a first ball. Tausif is the new batsman here. One ball and he has sent it in a style through the deep cow corner for a 6. जी हाँ, शारीरिक भाषा देखिए इस खिलाड़ी की, लग तो यही रहा है कि ये कैरन पोलार्ड जैसा है और उसी प्रकार से ये खेलते भी नजर आ रहे हैं। पहली ही गेंद का सामना वो कर रहे थे और कितनी सहनशीलता के साथ उन्होंने इस गेंद को उठाकर खेल दिया दर्शक दीर्घ में। बहुत ही बढ़िया शॉट ये जरूर लगा था और इस बार देखना होगा, इस बार सम्मान के साथ आगे आकर एक्स्ट्रा कवर की ओर से खेला, 1 रन से रोक नहीं पाएंगे वहां इस खिलाड़ी को। और शफी भाई, जब इस तरह के खिलाड़ी स्क्रीन के सामने होते हैं, पहली गेंद का वो सामना करते हैं और इस तरह का शॉट वो लगाते हैं, कहीं ना कहीं गेंदबाजों को डर जरूर होता है। Absolutely, in the world cricket we have inspirations like Karen Pollard, we have Mahendra Singh Dhoni, we have Virender Sehwag, a typical Sehwag style. When they used to come, be it a test cricket, 2020 cricket, one day cricket, Shahid Afridi, and I think these are the cricketers who never bothered that they are facing a first ball and send the ball outside the fence, and they doesn't bother that they will be out and they will lose their innings, but every time they entertain the crowd. Meanwhile, ball comes to the left-hand batsman. Oh, once again shorter in length, sends the ball towards the straightish point. Fielder was there, protection in the deep until the ball will be received by the wicketkeeper. One more to the addition now. It has brought now Tausif back on the strike. Tausif, 2 balls, 1 6 and 7 runs, and the score has gone up to 140 for the loss of 4 wickets, and over number 17th is in progress. The current run rate is 8.75. और हम अपने व्यूअर्स को यह भी कहना चाहते हैं कि आप इस लाइव से हटना मत, क्योंकि बांडीपोरा के जो खिलाड़ी हैं और ख़ास तौर से नासिर लोन, जिसको विराट कोहली कहा जाता है, वो उनकी टीम में हैं। और हाल ही में शफी भाई, नासिर लोन, मैं एक दर्शक के तौर पे गया था मैच देखने डुंगडारा में, जहाँ पे फाइनल हुआ था, और उन्हें 2 दिन पहले ही वहाँ शतकीय पारी खेली है नासिर लोन की। और इसलिए मैं अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहता हूँ कि आप इस लाइव में हिलना मत, ये मैच ऑन है और जिस तरह की टीम बांडीपोरा में है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि ओमपुरा इस मैच को जीत सकते हैं। Talking about the helicopter is hovering over the S&W ground, it adds more beauty and it looks like we are in the international ground at the moment, and because in terms of the dimensions, this is a big ground. It is one of the largest ground in the district Baramulla. And talking about the fieldings, we have point boundaries very long off, long on. Mid wicket are the longest boundaries around 75 meters, and if you are not able to go for big ones like boundaries and sixes, I think you have to capitalize the situation, go for singles, doubles, and stretch a good partnership here on, and stretch more and more and contribute towards the scoreboard. And score is unmoved at the moment. It's 140 for the loss of 4 wickets, and 17th over will be started now. और हमारी निगरानी के लिए ऊपर से भी यहाँ नजर दौड़ाई है, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितनी खूबसूरत जगह पे आज आपको लाइव कवरेज दे रहे हैं।
इस समय तौसीफ स्ट्राइक, इस बार बहुत ही अच्छा शॉट, वहाँ डीप पॉइंट पे उन्होंने खिलाड़ी ज़रूर तैनात किया है और उस कारण से एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा और वो एक रन ही हुआ। उस एक रन के साथ 141 रन बोर्ड पे और मैदान के अंदर इस समय जाहिद और तौसीफ खेल रहे हैं और तौसीफ ने पहले ही गेंद पे जो बड़ा छक्का लगाया था उसका सहयोग वहां करते हुए जाहिद, जिन्होंने 15 गेंदों का सामना किया और 26 रन बना के वो अभी भी नाबाद है, जिन्होंने 4 चौवे उसमें मौजूद हैं। 173 की स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे, जो T20 के लिहाज से बहुत बढ़िया आंकड़े हम जरूर कह सकते हैं। Ball comes from the school and right arm over the stumps to the right hand batsman, comes down the track, slower one, back of a length ball, beautifully ball, just following the batsman there, doesn't allow much more weight to the batsman and just shortens his length and sends the ball towards the wicket keeper. Well taken behind the wickets. This ball was around 105 kilometers in an over. That was a magnificent bowling from the bowler. Goes to the top of his bowling mark now. Coming and talking about the fielding, one slip continues in form of Zdar. Backward a point, straightish point, short cover, long off, long on, deep mid wicket. Shorter one, once again it just smacks on his stomach and one more to the addition now. Score goes up to now 142 for the loss of 4 wickets. Over number 17th is in progress. और शफी भाई बहुत ही अच्छा गति परिवर्तन बहुत ही कमाल का दिखाई दे रहे हैं इस ओवर में। और अगर आपको कामयाब होना है इस T20 फॉर्मेट में तो इस तरह की गेंदबाजी ही फिर आपको करनी पड़ती है, क्योंकि ना अंतिम ओवरों में जो खिलाड़ी हैं उनको स्पष्ट तौर पे यही काम होता है कि वो बड़े शॉट खेलना चाहते हैं। तो गेंदबाज, और ये एक बार फिर बहुत ही खूबसूरत गेंद, और ये देख के अच्छा लगता है शफी भाई, हमारे J&K के खिलाड़ी जो हैं अंतिम ओवर इस प्रकार से करते हैं, ये देख के अच्छा लगता है। Zahid Dar is a very smart cricketer and he's one of the sensational figure from Kashmir cricket, and every time he knows that if he will not be given the opportunity to play big shots, he creates some room there, goes inside out, plays some good shots through the offside. I think he's a genuine left-handed batsman. At the moment we have a right-handed batsman as well. Have a look on the fielding, 5 fielders are at the catching positions, they are patrolling the boundaries there, and ball goes and comes from the school and right arm over the stumps. Oh, that was once again a slower and back of a long delivery, back-to-back slower ones in this over. A bowler is having a strength if he is having some quality slower ones, because in 2020 cricket a new era came in since 2007 in world cricket, after the beginning of the world 2020 cricket in 2007 when India became the first champions against Pakistan. I think from then the bowlers have learned a lot of things, how to bowl a slower one, back of line deliveries, Yorker ones. I think this is the big strength of a bowler. Again a slower one, this was around 101 kilometers in an hour. जी हाँ, उनकी गति परिवर्तन को वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हैं और इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति। ये 17 ओवर की समाप्ति के बाद 143 पे 4 मास्टर 11 ओमपोरा की टीम, और ये ओवर बहुत ही किफ़ायती साबित हुआ है अगर आप बांडीपोरा की बात करें तो। और जैसे कि हम सुबह से कहते यही आए हैं कि अगर आपको अंतिम ओवरों में कामयाब होना है तो निरंतर और विविधता से आपको काम करना पड़ेगा, और ये दिखाया है उनके गेंदबाजों ने। और इसलिए एक बार फिर आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि खिलाड़ी जो हैं वो इस समय आपस में बातचीत करते हैं। अब केवल 3 ओवरों का खेल बचा है, यानी कि 18 गेंदों का खेल अब बचा है पहली पारी का। देखना यही होगा कि इन 3 ओवरों में वो किस तरह के रन बटोर सकते हैं अपनी टीम के लिए, ये देखना होगा। 17 ओवर की समाप्ति के बाद 143 पे 4 मास्टर 11 ओमपोरा की टीम। उमर, लास्ट टाइम हमने एक नई जो सोच विचार के साथ हम आए थे कि जो प्रोजेक्टेड स्कोर है वो क्या बन सकता है। क्या हमारे व्यूअर से बता सकते हैं कि 17 ओवर हो चुके हैं, 143 रन बोर्ड पे है, अभी 18 गेंदें बाकी है, अभी भी 6 खिलाड़ी बाकी है, तो क्या वो बता सकेंगे कि मास्टर्स 11 ओमपुरा कितना यहाँ पर टारगेट देंगे अपोनेंट्स KCA बांडीपुरा को? प्लीज़ जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कितना यहाँ पर टारगेट दे सकते हैं, और मैं आपके कमेंट्स को यहाँ पर रिप्लाई भी वापस करूँगा और
और निसार वसीम निसार मैच देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया इस साल यहाँ पर चंद्रामा में बूम बूम कप, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप भी बताइए दर्शकों को कि जितना वो जल्द करे और देखते हैं कि आज के विजेता कौन बन सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पे, कि आज के जो परफेक्ट जो बताएंगे कि आज कितना टारगेट दे सकते हैं यहाँ पर ओमपुरा बड़गाम, तो उस चीज़ के लिए हम इंतजार करेंगे। कमेंट्स में लिखिए प्लीज़। जी हाँ, आप अपना सहयोग ज़रूर करें, हमारे साथ साझा करें जो आपकी प्रतिक्रियाएं हैं खेल को लेके। हम उन विचारों का सम्मान करते हैं और सम्मान के साथ हम उनको आपको जवाब भी देंगे। हम अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहते हैं कि आप अपना जो सहयोग है वो ज़रूर इस लाइव में दें। आप किस तरह से प्रेडिक्ट कर रहे हैं इस खेल को, वो आप ज़रूर लिखें और हम आपके विचारों का सम्मान करते हैं और उनको हम रिप्ले भी करेंगे। उम्मीद है कि आप हमारी आवाज़ आप तक ज़रूर पहुंची होगी। 17 ओवर की समाप्ति के बाद 143 पे 4, ये 18 ओवर प्रगति पे है और पहले ही गेंद पे 2 रन जाहिद ने 18 ओवर प्रगति पे, और बहुत ही अच्छा शॉट। एक बार फिर से वहाँ 2 रन के लिए वहाँ दौड़ना चाहते हैं लेकिन अंत में नकारा, और हाँ ना, लेकिन अंत में उन्होंने 2 रन ज़रूर बनाए हैं। और ये देखिए, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि खिलाड़ी जो हैं थोड़े से निराश दिखाई दे रहे हैं। And we cordially welcome Haji Mohammad Rafi Paris Saab, the Chief Advisor of the Shine Supports Association, and he is currently on the post of, Deputy SP in Anti-Corruption Bureau. Thank you so much for joining me. Rafi Saab, you can also tell what will be the target given to the opponents here. Saeed Ashan, it is 176, Abdullah 165, Onisdar 187, Arhan 186, Mursalan 220, Gulzar Khande 180, Mukhtar Bhattu 175 plus, Shahid Lun 176, Tariq Manku, one of the big fan of SNW, thank you. He says 182, 173, Tanveer Dar 182, Umar Ummi 190, Shaukat Khande 170. And Nasir Mohsin 193, Wani Altaf says Ompura, Ganai Yunus says 175, Hilal says 180, Shaukat Khande 170, Ganai Sajad 164, Irshad Dar 165. Please बताइए क्या स्कोर है इस बार जो ओमपुरा ने बनाया। 147 for the loss of 5 wickets. We are in over number 18 here. Another wicket is gone now. He is walking back to the dugout. Thank you so much for joining me on the Kashmir Supports Watch, which is absolutely one of the biggest pages in the valley and across the country as well. It has its own reputation and its own faith among the public for giving a good journalism. Mujibur Rahman says Upper Wat 11 Supports Clubs 174. Thank you. 190 from Umar. सारे लोग जो है अपने अपने यहाँ पर जो है अगर हम कुल मिला के देखेंगे कि उनका जो टारगेट है प्रेडिक्टेड स्कोर जो है वो 170 प्लस ही यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्शकों ने बताया। मुझे लगता है कुछ लड़के ऐसे, इम्तियाज शाह आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। उमर अपने अपने जो सोच विचार है इस वक्त वो अपने रखे यहाँ पर सोशल मीडिया के कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के इस पेज पे। जी हाँ शफी, हमने पहले ही कहा था कि हम उनके विचारों का सम्मान करते हैं और ये देखिए हम यही देखना चाहते हैं कि आप में गेम अवेयरनेस कितनी है और ये होना चाहिए कि आप भी इस खेल में ज़रूर अपनी भागीदारी ज़रूर दें। अच्छा लगता है। और सिपनर की जो बात करें, पिछले इसी ओवर में उन्होंने एक झटका भी दिया है। 147 पे 5, ये 18वां ओवर प्रगति पे इस बार बैक ऑफ लेंथ गेंद थी लेकिन पूरी तरह से खेलने में असफल जरूर है। कीपर बिल्कुल स्टोमस के आगे बैठे हैं कि कब उनका पाँव हवा में उठ जाए मैं पीछे से काम तमाम करूं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी भी एक गेंद इस ओवर में बची जरूर है और उसके बाद केवल 2 ओवरों का खेल बचा है। और अगर हमारे व्यूअर्स ये सुनना चाहते हैं कि अगर आप इस प्रतियोगिता में अपनी टीम खिला रहे हैं तो आप 2 लेग स्पिनरों का चयन जरूर करें, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे कामयाब होते हैं स्पिनर्स, चाहे कोई भी स्पिनर्स हो, खास तौर से लेग स्पिनर्स। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय टीमें जो हैं हर टीम के साथ T20 के साथ 2 लेग स्पिनर होते तो जैंड की टीमें वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। उतना आसान नहीं होता है कि स्पिनरों को खेला, और ये मैदान, ये SNW मैदान उस प्रकार का है, इसकी डायमेंशंस इतनी बड़ी है कि स्पिनर के विरुद्ध उतना आसान नहीं है खेलना।
18 ओवर की समाप्ति के बाद 147 पे 5 मास्टर 11 ओमपुरा की टीम। Now coming back to the game now, 147 for the loss of 5 wickets, and it is over number 19th will be started. So we have 12 balls in the first innings here. Imtiaz Malla, the new batsman, comes one of the big figure from District Budgam. He is such a handy all-rounder. He has been given the name of one man army. He is absolutely kind of an all-rounder. He is absolutely a big one. Well taken behind the wickets. No run results. Miscued the shot, and there is no run score. Stays on 147 for the loss of 5 wickets, and over number 19th has been started. Talking about the top scorer of the match, Ejaz was the top scorer so far. 37 runs, 19 balls, 5 boundaries and 2 sixes. His strike rate was 195. And Riaz Paul was the another one, 32 runs, 31 balls and 4 boundaries and a 6 with a strike rate of 103. Meanwhile, ball comes right arm over the stumps. Once again, smashes the ball beautifully, but there's protection in the deep mid wicket there. Sends the ball back to the wicket keeper. Batsmen have all the time between the wickets to go for another run. It's 148 for the loss of 5 wickets. Talking about the late middle order and talking about the fielding as well, and as well as about bowlers of the KCA Bandipura, they came back very strongly and they have pulled out all the stoppers here, because Ompura Budgam were looking in a good tight sheet for some time. Looked like that they will go around 190, 195, but they have stretched it back. KCA Bandipura, and to some extent they came back and came back very strongly now. It's 148. Ball comes from the school and right above the stumps. Oh, slower one, but it was a fuller one as well. It's up in the air. Fielder is underneath it, but no, he can't stop the ball. But in fact, he cannot catch the ball. The ball was popping in the air for a long, long time. Fielder went and charging on it. Finally, he returns ball back to the bowler. A couple of runs on the board. Score goes up to now 150. Here comes for the Ompura Master 11 here. Now Imtiaz Malla will face another ball. Oh, goes for a big one. That's all the way through the deep sky leg fence. It's all the way for a big 6. You cannot bowl like these deliveries to Imtiaz. He's such a great all-rounder from District Budgam. A wonderful strike and sends it in a style. It's all the way for a 6. Magnificent shot. अगर आप इस खिलाड़ी को इस तरह की गेंदबाजी करते हैं तो वो छोड़ने वालों में से दर नहीं है। आप देखिए, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि बल्ले को उन्होंने निचले भाग में पकड़ा है, यानी कि वो बड़ी हिट करना जानते हैं। इस बार ये चूक है, लेकिन कीपर से भी वहां हल्की सी चूक हुई थी, उस कारण से बाई के रूप में शायद रन जरूर मिलेगा। जी हां, अंपायर ने प्रतिक्रिया दिखाई है कि बाई के रूप में ये रन मिला है। और शफी भाई, जिस तरह से ये इम्तियाज खेल रहे हैं, ऐसा तो लग रहा है कि ये एक ही किस्म बल्लेबाजी करना जानते हैं, और वो है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। Imtiaz is a big name in cricket, and he's such a handy all-rounder. Meanwhile, ball comes last time in the 19th over, 157 on the board for the loss of 5 wickets. Tausib is on strike now. Oh, miscued the shot, and it would have been a big gone on him. It's end of 19 overs, 157 for the loss of 5 wickets. Imtiaz Malla and Tausif are at the crease at the moment. Both have scored 8 runs, and Tausif has faced 9 balls. Imtiaz Malla has faced 5 balls. जी हाँ, अंतिम ओवर करने के लिए आए हैं जो बांडीपोरा की शान है। नासिर कोहली को अंतिम ओवर करने की यहाँ सौंप दिया गया है, और नासिर इस तरह के दिग्गज ऑलराउंडर में उनका शुमार किया जाता है। हालांकि वो युवा जरूर हैं, लेकिन बहुत ही सराहनीय काम ये करते हैं इस खेल में। हाल ही में डुंगडारा में उन्होंने एक शतकीय पारी खेली थी, और वो टर्फ पे उन्होंने वो पारी खेली थी, और टर्फ और मैट में जमीन आसमान का अंतर है। और जब आप उस टर्फ पे उस तरह के रन बनाते हैं तो कहीं ना कहीं उन रनों का फिर अहमियत भी और ज्यादा जरूर होती है। और नासिर जो हैं फील्डिंग में शायद परिवर्तन करना चाहते हैं। जी हाँ, फाइन लेग को उन्होंने 30 गज दायरे के अंदर बुलाया है।
Mohammad Rafi Saab, yes, you have made a valid point on the Kashmir Supporters Watch about the dimension, and surely we will go for it, but after the end of first innings, because we have a lot of, this time it was shorter in length, catches the call, deep sky, like there was a protection in the deep, that has been a big wicket for the bowler. Imtiaz Mallah has been sent back to the dugout, 6 wicket is down, over number 20 has been started, it's 157 on the board now. और जी हाँ, इस विकेट की वो बहुत ही ज्यादा तलाश थी वो, और उसके लिए नासिर लोन को अंतिम ओवर के लिए सौंप दिया गया था, और पहले ही ओवर में, पहले ही गेंद में उन्होंने उस खिलाड़ी को आउट जरूर किया है। और शफी, इस तरह का खिलाड़ी का आउट होना कहीं ना कहीं कुछ रनों का फर्क जरूर पड़ता है। Yeah, that's really true. That's correct point you have made here. I think if we will be talking about the Kashmir Supporters Watch, we have been, every time joined by around 400, 500 people, and this is just the second live match coming from the SNW Memorial Ground. Talking about this SNW competition, this is, on behalf of 3 legends of this village, Shabir, Nisar, and Wahid. Every time I am, talking about these 3 stars, I think we have a lot of cricketers, a lot of youngsters from Chandrahama, from this area, but I think there is no replacement for these 3 stars of this village who are not with we people. But I think every time I feel that they are around me, they are around in this ground, because the legacy that Shabir, Nisar, and Wahid that they have left for all the people and all the new generation, and it looks like that we are trying to contribute much more towards the game of supports what they have left here, and we are trying to take it and stretch it further towards another generation here. It's up in the air, catches the call, and deep sky, like there was a protection in the deep. He had to cover a bit of a distance, and catch has been dropped. This should not be done. I think the 5th catch has been dropped by KCA Bandipora here. Bowler looks quite disappointed now. जहां इन 2 रनों के साथ 159 रन बोर्ड पे हैं। अब केवल 4 गेंदों का खेल बचा है इस पहली पारी का, और नासिर निश्चित तौर पे निराश होंगे कि इस तरह के कैचेस इस स्तर पे छोड़ने नहीं चाहेंगे, और यही उनको नासिर शायद बता रहे थे अपने प्रतिक्रियाओं से। इस बार आगे की और गेंद एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग, एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा बल्लेबाजों को, और इस 1 रन के साथ 160 रन बोर्ड पे। शफी भाई, जिस तरह ये नासिर गेंदबाजी करते, क्यों इस खिलाड़ी की बातचीत इतनी होती है T20 फॉर्मेट में, चाहे कश्मीर क्रिकेट में, ये उन्होंने एक बार फिर से प्रदर्शन से कहा है, क्योंकि 4वें ओवर में है 18 रन देके उन्होंने 2 विकेट अर्जित किए हैं। Yeah, absolutely. That is why he has represented JKCA. He is such a big star and comes in, balls to the batsman. This one, slower one, back of a length again, beautifully bowled, and it was this time the bowler's zone, magnificent bowling, well taken behind the wickets by wicketkeeper, and there is no run. Score stays on 160, 6 men down, and over number 20th is in progress. We have yet 2 balls to go in this over. जहां पहला हाफ बांडीपोरा के खिलाड़ियों ने अच्छा नहीं खेला था, लेकिन ये क्रिकेट में दर्शकों को अभी भी बताएंगे 160 रन बन चुके हैं, 2 गेंदें बाकी है, कितना टारगेट दे सकते हैं यहाँ पर अपोनेंट्स? जहां इस बार जी नहीं, और ये क्या कर दिया है वहां जहां पे 1 रन भी होना नहीं चाहिए था, और वहां पे 2 रन उन्होंने बहुत ही आसानी से रन बनाए। शफी भाई, ये मानना पड़ेगा, ये खेल इस तरह का है, यहाँ 1 ही रन से अंत में हार जीत होती है। Oh, cricket is game of amusements, and cricket is a recreation for so many people, but this is the one of the most entertaining format of cricket. Every time in 2020 cricket you will see the shift of momentous, sometimes drama, sometimes lot of things do happen in this game, and you are enjoying it, we are enjoying it, and finally we are going with the last ball with Nasir comes in the 20th over. In the first innings, batsman is ready to face him. Batsman name please here, it's Akib is ready to face him. Tailenders are hitting the ball, and it looks like they have stretched back KCA Bandipora, because it looked for some time it will be around 190, but they have done a good job by their bowlers. Nasir comes, that was a full toss one, but that has been played towards the long off. Fielder comes in, returns ball back to the wicket keeper. Batsman between the wickets have all the ample time to go for a single. Score finally goes to now 163. Let's check who has become the winner of the today's
projected and predictable score. Let us check our commenters in the comment box. We are joined by 408 people at the moment here. I requested them, all the people, kindly share and follow and like this Kashmir Supports Watch. अभी हम चेक करना चाहेंगे कि किसने आज स्कोर जो है वो परफेक्ट बताया है. उमर अतर हमसे ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. अर्शद गुलजार बहुत बहुत शुक्रिया. दोनों का बड़ा नाम है शाहीन सपोर्ट्स में. जुबैर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया. अर्शद भाई, उमर भाई आपका बहुत शुक्रिया. मुझे लगता है हमेशा से आपका जबरदस्त सपोर्ट रहा है मेरी तरफ और एसोसिएशन की तरफ. आपने हमेशा एक अच्छा सपोर्ट किया है. यू हैव बीन वेरी गुड स्पोर्ट्समैन एवरी टाइम. एंड रकीब, वी हैव हैड अ गुड comment given by the Mohammad Rafi Paris Saab that Abdul Rakib should or the cameraman should display all the dimensions of the ground. So Omar, if we'll talk about the dimensions of the ground, this is not a small ground, this is a big ground, and you have some small grounds in New Zealand than SNW, and doesn't matter, this is not an international ground, but it's a kind of a ground where you have need of lot of power and skill and excitement is needed by every batsman so that they can go for big runs, because every time there is not need of only power but skill is very very important. जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा. और मैंने सुबह यही आपसे परिचय किया था कि इस ग्राउंड में जब आप रन बनाते हैं तो उन रनों की अलग अहमियत है, क्योंकि एक तरह से जो भी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं तो 100 बढ़ के एक टीमें इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं. और जब आप बड़ी टीमों के सामने यहाँ रन बनाते हैं और इस मैदान में, उन रनों की फिर एक अलग अहमियत जरूर होती है. एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट द स्पॉन्सर्स. जितने भी स्पॉन्सर है, हमारे टाइटल स्पॉन्सर जो है वो है सहारा डायग्नोस्टिक क्लिनिक जो हैदरबेग में उनका अस्पताल, और हर किस्म की जो सर्विसेज दे रहे हैं माशुक भाई. और सहारा डायग्नोस्टिक सेंटर जो है बहुत ज़बरदस्त अस्पताल है, बहुत ज़बरदस्त सर्विसेज दे रहे हैं. उमर भाई शुक्रिया. आदिल भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. शेख इमदाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया. सभी ने अपने अपने कमेंट्स बताए. देखते हैं कि आज के विजेता कौन बन गया जिन्होंने परफेक्ट यहाँ पर प्रेडिक्ट किया था स्कोर. और हमारे बायोकेयर लैब भी स्पॉन्सर है. जितने भी स्पॉन्सर्स है, वुड पार्क है, अहमद स्पोर्ट्स है, उन सबों का बहुत बहुत शुक्रिया. इस वक्त मेरे 3 ज़बरदस्त अजीज दोस्त है, शौकत रशीद, फयाज अहमद, आदिल जान, तीनों बड़े नाम, और तीनों हमेशा SNW ग्राउंड में आते हैं. और देखते हैं कि जो आदिल ने यहाँ पर ज़बरदस्त कल परफॉर्मेंस की है और बहुत खुशी है आदिल. लेकिन हम आपको सेकंड इनिंग्स में आप मिलते हैं. हम आपसे इजाज़त मांगते हैं. तो टारगेट जो है वो है ओमपुरा मास्टर्स 11 बडगाम ने यहाँ पर 164 रन का टारगेट दिया है अपोनेंट्स को, KCA बांडीपुरा को. उनके पास 2 बड़े दिग्गज बल्लेबाज है, जैद डार, नासिर लोन. हम आपको ज्वाइन करेंगे सेकंड इनिंग्स में. तब तक के लिए खुदा हाफिज. जी हाँ, आप बने रहे हमारे साथ. अंतराल के बाद हम एक बार फिर से आपके साथ लाइव विजुअल्स आएंगे. तब तक के लिए खुदा हाफिज.